तो बंद कर दिए। शुरू करने की Good morning to all of you. Welcome to this online class. Are you hearing? Are you hearing me? Are you listening? Anyone respond? Okay. Till now only 15 students have joined. Only 15 students have joined till now. Whether we should start? Now we should start. We are going to discuss today idealism and education. In the previous classes, we have already discussed the branches of philosophy and the problems related with different branches of philosophy like metaphysics, epistemology, and axiology. And also we have discussed the different branches and their relations of philosophy and their relationship with the education system. So today we are moving to the next unit of our syllabus, in which we have to study schools of philosophy with reference to particular philosophers. In this topic, in idealism and education, we have to discuss this topic with a special reference to Plato. This particular philosophy is very important because it will give you the foundation of understanding the schools of philosophy and their implications in education as well. So please be very, very careful, and if you have any query, then you ask in the chat room. Now we are going to start. Idealism, you must have studied this at the level of B.Ed level, but what we are going to discuss today is necessarily give you some extra reflections
for this understanding this philosophy. So please be careful. This idealism is a school of philosophy, and this is one of the oldest school of philosophical thought. Some writers have written that naturalism is the oldest philosophy of the Western world. For example, you may take the book of J. Donald Butler, Four Philosophies and Their Practices in Education and Religion. He has written that philosophy of naturalism is the oldest philosophy of the Western world. Then idealism came, then naturalism came, and after the advancement of epistemology, from naturalism, realism and pragmatism originate. This he has written in his book, Four Philosophies and Their Practices in Education and Religion. In education and religion. But some writers have written, and it is also my viewpoint, that idealism is the contemporary philosophy of naturalism. Idealism is also one of the oldest school of philosophical thought, and it runs through the history of philosophy, and can be called contemporary of naturalism. No doubt, naturalism is also an oldest philosophy, but if you believe in spiritualism, and if you believe in religion, then you must realize that if God has created this universe and the human beings, he must not have created this in the darkness. God has given us the knowledge and the ideas and the reflections and the guidelines through the superhuman beings, ideal human beings, and this has existed from the time immemorial. So from this point of view, you can also understand that idealism is one of the oldest school of philosophical thought. The idealism which we are going to discuss is with a special reference to Plato, and Plato is the person who gave a very systematic educational philosophy, first of all. So he is credited with this contribution, that Plato is the first person who gave a systematic philosophy of education. And he is considered as the father of idealism. Father of idealism. Since the material in the form of slide, I have already circulated among you, shared you. So you can see there, if you are if seeing the slide is feasible for you. I have written that the name idealism for the Plato's philosophy has been changed later. His his philosophy can best be attributed as ideaism. Ideaism, because Plato gave the idea and the conception of idea. Plato gave the conception of idea, and this idea is very significant in his philosophy. In his philosophy, the doctrine of idea. He says that ideas are ultimately real. So ideas are, I have written there that ideas are of ultimate cosmic significance. They are considered as ultimately real. So I will explain this at next stage. But the doctrine of idea, which Plato has given us, is very important thought. That is why his philosophy best, and it can be described, or best suited to be described as ideaism, because its central theme is doctrine of idea. But the later L has been added or incorporated in it due to euphony, and it became idealism. It is best suited for pronunciation as well as for hearing also,
So it is called idealism. So ideal is also ideal. Plato also says that ideas are ideal. Ideas are ideal. So in that sense also, it suits to his philosophy. That is why it became idealism. Later it became idealism. So ideas in this philosophy are of ultimate cosmic significance. They are considered as ultimately real. We will describe it at the next stage when we will discuss the Plato's doctrine of idea. First, we can say here, okay, idealism is based on the philosophy of Plato, and in this philosophy, reality is considered as mental, not material. This is the best any explanation of idealism. So in idealism, we say that ultimate reality is of mental, spiritual, rather than physical or rather than material. What does it mean? इसका मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल रियलिटी है और मटेरियल रियलिटी नहीं है, इट इज मेंटल। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पिरिट और माइंड एंड बॉडी। तो आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि बॉडी जो है हमारा, ये एग्जिस्ट तो करता है बट ये अल्टीमेटली रियल नहीं है। दिस इज नॉट अल्टीमेटली रियल। व्हाट इज अल्टीमेटली रियल इज स्पिरिट और माइंड। अगर स्पिरिट को हम अपने आप से अलग कर दें तो बॉडी हमारा चाहे जितना भी खूबसूरत हो, जितना सुंदर हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता फिर। तो आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि स्पिरिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी। यही प्लेटो का भी व्यू है। प्लेटो कहते हैं कि स्पिरिट इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेटो का ये कहना है कि आइडियाज आर अल्टीमेटली रियल। जब हम बॉडी को जब हम कहते हैं कि ये रियल नहीं है, इसका मतलब कि आप इस चीज को और आप पूरे कॉस्मोस पे अप्लाई करें कि जितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में, उसका एक जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बॉडी है, मटेरियल जो एग्जिस्टेंस है उसका, वो रियल नहीं है। वो प्लेटो कहते हैं कि आप उसकी जो स्पिरिचुअल रियलिटी है वो रियल है। वो स्पिरिचुअल रियलिटी जो है उसकी वो रियल है, और उस स्पिरिचुअल रियलिटी को आप अपने सेंसेस से नहीं देख सकते, अपने सेंस ऑर्गन से आप उसको परसीव नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ कंसीव कर सकते हैं अपने माइंड से, अपने माइंड से क्रिएट उसको कंसीव कर सकते हैं। उन आइडियाज का कंटेम्पलेशन सिर्फ माइंड से हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आइडियाज यानी यहाँ पर क्या है कि यानी अल्टीमेट सुप्रीमेसी इज ऑफ आइडियाज एंड रियलिटी इज ऑफ यानी मेंटल नेचर। इसको आप माइंड से ही कंसीव कर सकते हैं, स्पिरिट के माध्यम से ही कंसीव कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कंसीव नहीं कर सकते, यानी सेंस ऑर्गन के जरिए आप इसको नहीं फील कर सकते, नहीं आप इसको महसूस कर सकते। तो इसलिए देखिए, आप जितनी चीजों को देखें, अगर आप मानते हैं कि उसकी एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, वो जो चीजें हम देख रहे हैं, प्लेटो कहते हैं कि हर चीज के बीच, प्लेटो का ये कहना है एक्चुअली कि दो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एक जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप कह सकते हैं उसको, जिसको प्लेटो ने आइडिएशनल वर्ल्ड कहा है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज यानी जहां आइडियाज ही आइडियाज हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंसीव कर सकते हैं। और दूसरा एक मटेरियल वर्ल्ड है जो हमारे सामने है, जिसमें हम सब हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड आप कह सकते हैं, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, आप इसको वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। प्लेटो का कहना यह है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये रियल नहीं है,
बल्कि जो आइडियाज उसके पीछे आइडिएशनल वर्ल्ड में है वो रियल है। और इस मैंने वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स में या फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है, ये उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जो उसका कंसेप्शन है, आइडिया है, उसका वो मटेरियल ट्रांसलेशन है एक तरह से। आप उसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि एक चेयर है, एक चेयर है। तो चेयर जितनी भी एग्जिस्ट कर रही है इस वर्ल्ड में, आप उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स के चेयर देखते हैं। प्लेटो का कहना यह है कि एक चेयर का एक आइडिया है, यानी आइडिया है, चेयर का एक आइडिया है, और वो आइडिया जो है उसका मटेरियल ट्रांसलेशन है वर्ल्ड के जितने भी चेयर्स हैं, जितने भी चेयर्स हैं उसका मटेरियल या फिजिकल ट्रांसलेशन है। और आप ये जानते हैं कि जब ट्रांसलेशन किसी चीज का होता है तो वो परफेक्ट नहीं होता, वो इम्परफेक्ट ही होता है। 100% परफेक्ट ट्रांसलेशन किसी भी चीज का नहीं होता। आप ऐसे भी अपने एक्सपीरियंस में भी देखते हैं चीजों को कि जब आप किसी लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किसी चीज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं हुआ करता। ये उसी यानी ये उस तरह से जिस तरह से जिस चीज से आप, जिस मीडियम से आप दूसरे मीडियम में गए हैं, पहले मीडियम में जिस तरह से वो यानी सेंस को, मीनिंग को, फीलिंग्स को जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, उस तरह से वो दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर रहा होता है अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो। यानी ये हमारा एक्सपीरियंस है कि ट्रांसलेशन जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हुआ करता। प्लेटो का यही बात कहना है। प्लेटो का कहना यह है कि आइडियाज आइडिएशनल वर्ल्ड में है, और फिजिकल वर्ल्ड के जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, वो उसका एक मटेरियल ट्रांसलेशन है, और मटेरियल ट्रांसलेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता है नहीं। तो इसलिए हम उसको रियल भी नहीं मानते। अगर सारे आइडिया जितने मटेरियल रूप हैं किसी भी चीज के, फॉर एग्जांपल मैंने चेयर का नाम लिया, अगर सारे चेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एक आइडिया जो परसिस्ट कर रहा है चेयर का, वो परसिस्ट करेगा, वो खत्म नहीं होगा। और इसीलिए प्लेटो का कहना यह है कि आइडियाज आर अल्टीमेटली रियल, आइडियाज आर अल्टीमेटली, यानी आइडियाज जो हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं, वो सेल्फ एग्जिस्टेंट हैं और सेल्फ परसिस्टेंट हैं, वो रहेंगे है नहीं। वो जो है डिपेंडेबल हैं, वो रिलायबल हैं, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। सो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, material translations of that particular idea can be destroyed, but the very idea cannot be destroyed. That is why he says that ideas are ultimately real. And this philosophy is called idealism, or later it is called as idealism. मैंने ये कहा कि जो आइडियाज हैं, वो प्लेटो का ये भी कहना है कि वो आइडियाज जो हैं वो आइडियाज आइडियल भी हैं। यानी अगर आप किसी चीज को जज करना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप जज करना चाहते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट को या फिजिकल ऑब्जेक्ट को या वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसको यानी आप इवेल्युएट करना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये लेक्चर दोनों लैंग्वेज में होना ठीक है, मैं इसको केयर करूंगा, ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आइडियाज के बारे में, आइडियाज को ये सेल्फ एग्जिस्टेंट है, यानी ये पहले से मौजूद हैं, ये स्वतः मौजूद हैं, ये अपने कॉज पर मौजूद हैं और ये खत्म नहीं होते, ये सेल्फ एग्जिस्टेंट भी हैं और ये रहते हैं, इनके अंदर सस्टेनेबिलिटी है, ये ठहरे रहते हैं, ये खत्म नहीं होते। यानी अगर आप, मैं ये कह रहा था कि दुनिया की जो भी चीजें हैं, जिस आइडिया को भी आप लें, उसका जो भी मटेरियल ट्रांसलेशन है, अगर आप उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आइडिया उसका बाकी रहेगा। और इसीलिए प्लेटो का कहना यह है कि वो आइडियाज अल्टीमेटली रियल है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आइडियाज के बारे में जो प्लेटो ने ये बात कही है, आइडियाज के बारे में प्लेटो ने ये कहा कि आइडियाज क्या है, ये एक तरह का एसेंस ऑफ आर्कीटाइप है, ये एक तरह का मोल्ड है जिसमें मटेरियल चीजों को, फिजिकल चीजों को कास्ट किया जाता है। ये मटेरियल मोल्ड्स in which all matter is cast, and they are the ideals or standards or universals by which things of sense are to be judged.
उसका ये कहना है कि ये जो आइडियाज हैं ये बिल्कुल आदर्श हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ये आदर्श है, ये स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल है, जिसके बेस पर आप उस क्लास की चीजों को जज कर सकते हैं। तो आइडियल्स यहाँ आते हैं, इसलिए भी इस फिलॉसफी को हम आइडियलिज्म कह सकते हैं, और इसमें कोई यानी दो मत नहीं है, बुराई नहीं। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो हिंदी में अगर हम आइडियाइज्म करते हैं तो आइडियाइज्म जो इसकी ओरिजिनल फिलॉसफी है प्लेटो की, तो उसको हम विचारवाद ही कह सकते हैं, वो बेहतर है। आदर्शवाद भी कहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आदर्श की बातें यहाँ मौजूद भी हैं, क्योंकि आइडियाज को वो आइडियल मानते हैं प्लेटो, इसलिए हम अगर इसको आदर्शवाद कहने लगे हैं तो इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। लेकिन ये इसका ओरिजिनल नेम विचारवाद यानी आइडियाइज्म ही बेहतर है, आइडियाइज्म ही बेहतर है। हम ये बात कर रहे थे सबसे पहले यहाँ पे, आप आइए हम यानी जहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आपसे कि क्या है, इसके बाद अब इसी आइडियाज के ऊपर आप देखेंगे, बहुत सारी किताबों को देखेंगे आप जो आइडियलिज्म को जो लोगों ने डिफाइन किया है, वो डिफरेंट तरीके से लोगों ने इसको डिफाइन किया। मैंने यहाँ आपको एक डेफिनेशन जेम्स रॉस का दिया हुआ है, और उसके रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं आपके स्लाइड पे। मैंने जेम्स रॉस ने अपनी किताब ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, उसके पेज नंबर 60 पर उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी टेक्स मेनी एंड वेरिड फॉर्म्स but the postulates underlying all is that mind or spirit is the essential world stuff। यानी वो कहते हैं and that the true reality is of a mental character। ये बात जो मैंने एक्सप्लेन किया आपसे, उसको ब्रीफली जेम्स रॉस ने यहाँ पे कहा है कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो है ये कई फॉर्म लेती है। आपको मैं कई सारे लोग बताऊंगा जिसके जो थिंकर्स जुड़े हुए हैं इस आइडियलिज्म के स्कूल से। इसमें आपको बहुत सारे नाम आएंगे। पहला नाम तो प्लेटो का है, प्लेटो की फिलॉसफी का अपना एक रूप है। दूसरे लोग हैं जैसे लिबनीज हैं, उनका एक अपना रूप है, यानी तो हीगल है, उनका एक अपना रूप है। लेकिन जब हम लोग किसी स्कूल को पढ़ते हैं तो उस स्कूल से जुड़े हुए जितने थिंकर्स हैं उसके जो कॉमन आइडियाज हैं उसको लेके चलते हैं, हम चलते हैं। अब चूंकि हमें यहाँ पर चूंकि बताया हमें जो टास्क है वो ये है कि प्लेटो को स्पेशल रेफरेंस देना है, इसलिए मैंने हर जगह प्लेटो को लाया है बीच बीच में, और हर जगह उनकी जो थॉट है उसको स्पेशली मैंने एम्फेसाइज किया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आइडियलिज्म को जो डिफाइन किया है जेम्स रॉस ने, वो यही कह रहे हैं कि जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है ये कई फॉर्म लेती है, यानी कई वेरियस फॉर्म लेती है। और आपको ये भी पता होगा कि आइडियलिज्म यानी इसमें भी आप देखेंगे लिटरेचर में भी आइडियलिज्म है, आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में भी आइडियलिज्म होती है। तो आप डिफरेंट फील्ड में भी इसका इम्प्लीकेशंस देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो इसके सबके पीछे जो बेसिक चीज है वो क्या है, दैट इज माइंड और स्पिरिट इज एसेंशियल वर्ल्ड स्टफ। वो कहते हैं कि माइंड मान लीजिए या स्पिरिट मान लीजिए, ये इस वर्ल्ड का सबसे एसेंशियल यानी स्टफ है, यानी सबसे बुनियादी चीज है, इसको कहिए आप बेसिक चीज, सब्सटेंस है, यानी अंडर द ट्रू रियलिटी इज ऑफ ए मेंटल कैरेक्टर। अगर आप इस यूनिवर्स की रियलिटी को समझना चाहते हैं तो वो आप उसको उसका कैरेक्टर मेंटल है, यानी आप उसको माइंड से ही परसीव कर सकते हैं, माइंड से ही परसीव कर सकते हैं। योर सेंस ऑर्गन कैन नॉट कंप्रीहेंड द अल्टीमेट रियलिटी बिकॉज द थिंग्स यू आर सीइंग अराउंड अस योरसेल्फ यानी is not ultimately real because they are the material imperfect embodiment of the idea to which the class that particular thing belongs। यानी वो चीज जो आपके सामने है, आइडियाइज्म ये कहता है कि वो चीज रियल नहीं है, वो एक मटेरियल रूप है, वो एक भौतिक रूप है आइडिया का, उस पर्टिकुलर आइडिया का जो आइडिएशनल वर्ल्ड में है उसका, और आपके सामने जो चीज है वो उसका फिजिकल मटेरियल भौतिक रूप है, और वो चूंकि रियल नहीं है तो उस चीज को जो आप देख रहे हैं, उस चीज को देखने के बाद आप जो उसके बारे में सोच रहे हैं या उसकी रियलिटी को आप परसीव कर रहे हैं, वो रियल कैसे हो सकती है जबकि वो चीज ही आपके सामने रियल नहीं। रियल तो वो उसके पीछे आइडिया है एक,
और उस आइडिया को आप माइंड से ही परसीव कर सकते हैं। इसी वजह से वो ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो मेंटल कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर मेंटल है, यानी यू कैन परसीव द रियलिटी ओनली थ्रू माइंड। ये है उसका डेफिनेशन जिसको मैंने आपसे शेयर किया। अब आप चलें आगे देखें कि इस स्कूल ऑफ थॉट से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने दिया है और उनका पीरियड भी दिया आपके सामने हमने, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो प्लेटो का ही है, जिनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, यानी क्योंकि उनकी सबसे पहले उनका ही ये आइडिया यानी डॉक्ट्रिन ऑफ आइडिया जो उन्होंने दिया, उसके आधार पर ये फिलॉसफी बेस्ड है। प्लेटो का दूसरा नाम भी है, जो असल नाम है उनका, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, एरिस्टोकिल्स, मैंने वहां पर मेंशन किया है उसको। देन प्लोटिनस हैं, यानी स्पिनोजा हैं, लिबनिज हैं, बर्कले हैं, कांट हैं, फिक्टे हैं, हीगल हैं और शेलिंग हैं। ये बहुत सारे नाम हैं जो इम्पोर्टेंट नाम है, इस लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं इस आइडियलिज्म के। इन सब की डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर की, जिसमें उनके डेट ऑफ बर्थ भी है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी है, और ये सारी चीजें उनके सामने। तो हम लोग अब यहाँ आते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे, यानी जो यहाँ तक तो यानी जो जो उनके थिंकर्स थे उनको मैंने आपसे शेयर किया। अब जो आप इनके मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट्स, यानी मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट्स, मैंने आपसे कुछ बातें तो आपसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही शेयर कर दी हैं कि रियलिटी यहाँ पर क्या है, दिस इज ए स्पिरिचुअल इन नेचर रादर देन फिजिकल, मेंटल रादर देन मटेरियल। मैं समझता हूँ कि ये बात आप बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल है रियलिटी, बिकॉज उसके पीछे स्पिरिट है या माइंड है या आइडिया है जो इम्पोर्टेंट है आइडियलिज्म के थिंकर्स के सामने। और ये मेंटल क्यों है ये भी मैंने आपसे बताया, बिकॉज यू कैन परसीव द रियलिटी थ्रू माइंड ओनली, यानी sense organs cannot comprehend, cannot analyze, cannot scrutinize the ultimate reality, and because the things we are seeing, we are yani sensing, we are experiencing, that those things are not real, ultimately real. Then idealists say that these things exist, they do not deny the existence of the world around us. ऐसा नहीं है कि वो इस वर्ल्ड को मानते ही नहीं है बिल्कुल। अगर ये दिमाग में आती है कि फिर ये क्या है, ये सब जो हमारे सामने आया है, दुनिया है और इसके सारे बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं? नहीं, ये एग्जिस्ट कर रही हैं, वो मानते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी उनका एक फिजिकल रूप है, उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो कहते हैं कि जहां तक उसकी रियलिटी की बात है, so they say that the real as the things are, they are not ultimately real, यानी ये अल्टीमेटली रियल नहीं है। अगर आप उसको आप बिल्ड करेंगे, उसको खोलेंगे, आप उसके तहों में जाएंगे, है नहीं, तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी रियल, बल्कि रियल उसके पीछे वो स्पिरिट मिलेगा, वो आइडिया मिलेगा, है नहीं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये रियल है। तो ये सेंस है उनके कहने का। और वो कहते हैं कि जो जितनी मैंने आपसे बातें शेयर की कि थिंग्स आर सिंपली द मैनिफेस्टेशन ऑफ सम मोर फंडामेंटल स्पिरिचुअल रियलिटी, a universal mind which is all embracing, all knowing, all rational. यानी आप देखें कि एक स्पिरिचुअल, एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलिटी है वर्ल्ड की, जिसको आप गॉड कह सकते हैं, आप गॉड कह सकते हैं, आप ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। तो थिंग्स आर सिंपली, कहते हैं कि ये जो हाईएस्ट माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है, एक्चुअली उसी से सब चीज जुड़ी हुई है। हमारी जो स्पिरिचुअल रियलिटी है वो भी उससे जुड़ी हुई है, और उसी का यानी एक तरह से सब मैनिफेस्टेशन है। तो सारी चीजें उसी का मैनिफेस्टेशन है, जो यानी मोर फंडामेंटल स्पिरिचुअल रियलिटी है इस यूनिवर्स की, यानी एक स्पिरिचुअल माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है, विच इज ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल नोइंग, ऑल रेशनल। वो सारी चीजों को कवर किए हुआ है, सबको देख भी रहा है, सबको जान भी रहा है, और वो काफी रेशनल है। इसलिए आप इस यूनिवर्स के अंदर देखेंगे काफी रेशनलिटी है इस यूनिवर्स के अंदर। ये कॉस्मोस जो है काफी रेशनल कॉस्मोस है, यानी इसकी एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक रेशनल कैरेक्टर भी है इस यूनिवर्स का, जिसको आप समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं कितना रेशनल है। मैं बहुत बार अपनी क्लासों में ये बात कहता हूँ कि रेशनलिटी इसकी देखनी हो, कि देखें इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, ये सब अपने अपने
यानी एक ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, लेकिन कभी कोई किसी से टकराता नहीं, कभी कोई किसी से टकराता नहीं, सब अपने अपने इसमें है। और ये वर्ल्ड कितना रेशनल है, यानी इसको आप फील कर सकते हैं इसके बहुत सारे डायमेंशंस पर। सुशील ये पूछ रहे हैं कि सर, कैन बी कॉल्ड गॉड इज रिलेटेड टू आइडियलिज्म? ऑब्वियसली one aspect of idealism is spiritualism, and spiritualists and clearly say that God is ultimately real. They say that spirit and God is ultimately real. So we can associate God with a spiritual dimension of the idealism. But all idealists do not use the name of God. They say that absolute mind, absolute reality, and these terms they use, but they all do not use God. But spiritual idealists, they use God, and they believe in God, and they say that God has created this universe, and God is ultimately real, and He is the universal mind, and to which all human beings or all part of this universe, all components of this universe belong. This question, I am going to also explain in the next point. You can see a spiritual reality may be either personal, like an anthropomorphic God for Christians, an idealist, or impersonal spirit expressing itself intimately in all that exists for other idealists. यहाँ ये बात कही गई है कि जो स्पिरिचुअल रियलिटी है ये पर्सनल भी हो सकती है, लाइक क्रिश्चियंस यानी क्रिश्चियन आइडियलिस्ट जितने भी हैं। पर्सनल का मतलब ये है कि वो किसी एक पर्सन को, जो एंथ्रोपोमॉर्फिक जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, यानी जो ह्यूमन कैरेक्टर पर बना हुआ हो, यानी जिसको आप देखते हैं कि ह्यूमन रूप, जैसे उन्होंने दिया हुआ है इसको जेसस को दिया हुआ है, ह्यूमन रूप दिया हुआ है, कहते हैं गॉड इसी रूप में आ गया। तो ये जो कैरेक्टर है ये एंथ्रोपोमॉर्फिक कहलाता है गॉड। So Christian idealists and other religious idealists, even Islamic, you can say, and some shades of Hinduism also. So they believe in anthropomorphic God, any God, and they believe in one God, and they say the term God, and but some idealists are there. For them, the spirit is impersonal. They do not say that that particular God is particular person or a particular identity, and have a particular identity. But they say that there is some power, there is some universal mind, some power, absolute mind, to which all things are related, and He is expressing itself and intimately in all that exists for other idealists. तो दूसरे आइडियलिस्ट जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि वही एक हाईएस्ट एब्सोल्यूट माइंड है जो अपने आप को इम्पर्सनल रूप में तमाम चीजों में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप इस तरह से सोचेंगे, इसको आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग इम्पर्सनल आइडियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट माइंड है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिसके लिए वो गॉड का लफ्ज यूज नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि वो तमाम चीजों में, गॉड दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसमें वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट है उसके अंदर। इसलिए आइडियलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आइडियलिज्म ये कहते हैं कि स्पिरिट, जो हमारा स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं गॉड के स्पिरिट से जुड़ा हुआ, उसका एक स्पार्क है। और पर्टिकुलरली हीगल तो इसको बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि जो हमारा स्पिरिट है वो गॉड के स्पिरिट का एक फ्रैगमेंट है, एक पार्ट है। मैं उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आइडियलिस्ट का ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा था वो ये है, वो ये समझते हैं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो सब स्पिरिचुअल हैं, दे ऑल हैव सम स्पिरिट। हम जिसको समझते हैं हम लोग कि ये चीजें डेड हैं या इसके अंदर लाइफ नहीं है, आइडियलिस्ट ऐसा नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है उसकी भी एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, स्पिरिचुअल रियलिटी है, यानी जिसको आप मुर्दा समझ रहे हैं, जिसको हम नॉन लिविंग समझ रहे हैं, उसको भी आइडियलिस्ट ये समझते हैं कि इसकी एक स्पिरिचुअल रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसलिए वो कहते हैं
कि एजुकेशन के जरिए से वो जो स्पिरिचुअल जो रिलेशनशिप है हमारा अपने अराउंड जितनी भी चीजें हैं उससे उससे उस रिलेशनशिप को हमारी इंटीमेसी बढ़नी चाहिए। स्पिरिचुअल जो हमारी एक इंटीमेसी उससे है वो हमारी उससे बढ़नी चाहिए, यानी हमारा उससे एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अगर हम लोग समझ पाए, यानी हर चीज की एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, यानी स्पिरिचुअली वी आर रिलेटेड, यानी वी आर रिलेटेड, सो वी मस्ट यानी यानी इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप एंड वी मस्ट मेक दिस रिलेशनशिप स्ट्रांग। हमको इसको बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। हम तो तोड़ने पर लगे हुए हैं इन रिश्तों को, हम तो आप बहुत सी चीजों पर क्लासिफिकेशन करने लगे, हम इन रिश्तों को तोड़ रहे हैं। जो स्पिरिचुअल हमारा एक रिश्ता है एक दूसरे से है उसको हम तोड़ रहे हैं। लेकिन आइडियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये हम बहुत बड़ा यानी गलत काम कर रहे हैं। हमारा एक आइडियल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हर चीज से एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हर चीज से एग्जिस्ट कर रहा है और उससे हमारी इंटीमेसी बढ़नी चाहिए एजुकेशन के माध्यम से, उससे हमारा रिश्ता भी बनना चाहिए। अब मैं दूसरी बात जो कह रहा था आपसे वो था हीगल के संदर्भ। हीगल क्या कहते हैं, यानी हीगल कहते हैं कि जो है ये जो हम लोग क्या हैं, हम लोग उस एब्सोल्यूट माइंड का एक फ्रैगमेंट है, नहीं, एक फ्रैगमेंट है। और जब फ्रैगमेंट होता है किसी चीज का, आप इसको समझ सकते हैं, यानी उसका एक टुकड़ा है समझ लीजिए, एक स्पार्क है, उसकी एक चिंगारी समझ लीजिए अपने आप को, आप जो समझें। जैसे एक आयरन रॉड है, एक रॉड है, उस रॉड से उसके बुरादे निकलते हैं, उसके फ्रैगमेंट्स निकलते हैं। आप देखते हैं कि आयरन रॉड के अंदर, पेरेंट रॉड के अंदर जो भी क्वालिटीज होती हैं, जो भी उसकी क्वालिटीज होती हैं, उसका मैग्नेटिज्म, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कुछ भी क्वालिटीज उसके अंदर है, अगर उससे कोई स्पार्क, कोई बुरादा उससे अलग होता है तो वो उन क्वालिटीज को लेके अलग होता है, यानी उसके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज होंगी। आप उसी तरह समझें, हीगल का ये कहना है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग एक्चुअली उस एब्सोल्यूट माइंड के एक स्पार्क है, यानी एक स्पार्क है। हम इसको ह्यूमन नेचर पे फिर आएंगे तो वहां पर हम इसको लाएंगे। तो हम क्या है कि हमारे अंदर वो गॉडली क्वालिटीज, वो गॉडली एट्रीब्यूट्स जो गॉड के अंदर हैं वो ऑलरेडी हमारे अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि हम उसके एक स्पार्क हैं। तो हमारे अंदर वो रैशनैलिटी भी है, गॉड के अंदर जो रैशनैलिटी है, गॉड के अंदर जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर भी वो ब्यूटी है, गॉड के अंदर जो भी यानी जो भी एबिलिटीज है, दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स हमारे साथ भी। तो हम भी स्पिरिट हैं, हम भी स्पिरिचुअल हैं, यानी और हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम गॉड लाइक बन सकते हैं, है नहीं। हम अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत करें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर, तो हम गॉड लाइक बन सकते हैं। तो ये है डायमेंशन जो उसका, हम इसको अलग फिर ह्यूमन नेचर पे जब आते हैं फिर वहां हम डिस्कस करेंगे। इस बीच में हम एक बार फिर चलते हैं जो जहाँ पे हम आपको जो स्लाइड्स हमने दिए हैं उसमें एक तरफ से हम थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पे प्लेटोज डॉक्ट्रिन ऑफ आइडिया, मैंने आपसे ये आइडिया का कंसेप्शन बयान किया है, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे उसको ये करूं कि प्लेटो कंसीव द वर्ल्ड एज ए लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ आइडियाज। प्लेटो ये समझते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये कॉस्मोस जो यूनिवर्स जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल सिस्टम है आइडियाज का। एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझ सकते हैं आप, जो तमाम चीजों को कवर किए हुए। तो ये एक सिस्टम ऑफ आइडियाज है इसके पीछे जो अल्टीमेटली रियल है। तो प्लेटो कंसीव्स द वर्ल्ड as a logical comprehensive system of ideas, an organic unity, a well ordered world और a rational world। ये rational world भी है और well ordered है, बिल्कुल तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, बहुत ही रेशनल हैं। तो प्लेटो इसको एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के रूप में देखता है, एक लॉजिकल सिस्टम ऑफ आइडियाज के रूप में देखता है। और जैसा कि आपसे हमने बताया कि वो कहते हैं कि आइडियाज अल्टीमेटली रियल हैं, और ये आइडियाज सिर्फ मेंटल स्टेट नहीं है, उनका कहना है these are not simply mental state rather than the essence of archetype which give form to the cosmos। कहते हैं कि आइडियाज जो हैं ये एक तरह का मोल्ड है जिसमें ढाले जाते हैं चीजें, मटेरियल चीजें ढाली जाती हैं। ये उसका इसेंस है एक तरह से, ये उसका आदर्श है एक तरह से, ये उसका यूनिवर्सल है एक तरह से, जिसमें चीजें ढाली जाती हैं, जिसके अनुसार चीजों को ढाला जाता है।
और उससे आप उन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो दे आर द आइडियाज आर द इमैटेरियल मोल्ड्स in which all matter is cast. They are the ideals or standards or universals by which things of sense are to be judged. यानी इसी इन्हीं आइडियाज के, मैंने पहले भी कहा इस चीज को, कि अगर चीजों को जज करना हो, यानी अगर चीजों को जज करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसके आइडियाज से कंपेयर करेंगे कि इसका जो परफेक्ट आइडिया है उस आइडिया से ये चीजें कितनी मेल खा रही, ये चीज कितनी मेल खा रही। जैसे वो प्लेटो को मैं आगे चल के बताऊंगा, प्लेटो ने एक कंसेप्शन ऑफ मैन दिया, यानी मैन का कंसेप्शन दिया। तो अब मैन का जो कंसेप्शन है उस कंसेप्शन से हम मिलाएंगे। एक आदमी को अगर हमको जज करना हो तो हमको ये देखना होगा कि प्लेटो ने जो कंसेप्शन ऑफ मैन दिया है, जो उसका आइडिया है मैन का, उस आइडिया से ये आदमी कितना दूर है या कितना सही है, नजदीक है, यानी कितना जज कर सकते हैं उसको। उसी तरह से प्लेटो ने सोसाइटी का एक आइडिया दिया है। तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी का क्या आइडिया है। तो अगर किसी सोसाइटी को हमें जज करना हो तो हम उस आइडिया, सोसाइटी जो आइडिया का दिया हुआ है उन्होंने, उस आइडिया ऑफ सोसाइटी से हम उसको जज करेंगे। ये मेरे कहने का सेंस है। तो ये है प्लेटो का ये कहना कि आइडियाज आर द स्टैंडर्ड्स और आइडियल्स और यूनिवर्सल्स बाय विच थिंग्स ऑफ सेंस आर टू बी जज्ड, उसी से उसको जज किया जाए। प्लेटो का ये भी कहना है कि कुछ आइडियाज ऐसे हैं, यानी हर चीज का आइडिया होता है। उसका कहना है देयर आर आइडियाज ऑफ थिंग्स, रिलेशनशिप्स, क्वालिटीज, एक्शंस, वैल्यूज, सबका आइडिया है, हर चीज का। चीजों का भी आइडिया है, संबंधों का भी आइडिया है, गुणों का भी आइडिया है, यानी एक्शंस हैं उसका भी आइडिया है, वैल्यूज का भी आइडिया, यानी कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिसको प्लेटो कहते हैं कि उसको फिजिकल फॉर्म नहीं दिया जा सकता, उसके यानी उसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है एक्चुअली, यानी उसका मटेरियल ट्रांसलेशन कहिए आप, नहीं होता है। तो ऐसे आइडियाज को कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी रियलिटीज हैं इस वर्ल्ड की। दीज आर द ग्रेटेस्ट रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल ब्यूटी का मटेरियल ट्रांसलेशन नहीं, आप नहीं कर सकते ब्यूटी को मटेरियली ट्रांसलेट, है नहीं, ब्यूटी का कोई मटेरियल ट्रांसलेशन नहीं, गुडनेस का कोई मटेरियल ट्रांसलेशन नहीं, है नहीं, एंड एसेंस, इसका कोई मटेरियल ट्रांसलेशन नहीं। तो इसलिए कहते हैं प्लेटो कि ट्रूथ है, उसका भी कोई मटेरियल ट्रांसलेशन नहीं है। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, दीज आर द ग्रेटेस्ट रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज ये बिल्कुल इसका कोई मटेरियल ट्रांसलेशन ही नहीं है, इसमें कोई गंदगी आने का कोई चांस ही नहीं है, कोई कमी आने का कोई चांस ही नहीं है। ये ऐसी रियलिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि यानी जो मैंने एक बात पहले भी कही है, प्लेटो कहते हैं कि मैटर जो है उसको तो आप सेंस ऑर्गन से समझ सकते हैं, जो फिजिकल बॉडी है उसको तो आप सेंस ऑर्गन से समझ सकते हैं, लेकिन आइडियाज को आप माइंड से ही परसीव कर सकते हैं। प्लेटो का ये कहना है कि आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और वो एक सर्टेन ऑर्डर में रिलेटेड है, यानी उनका एक कोई ऑर्डर बना हुआ है, उस ऑर्डर से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और फिर ये सारे ऑर्डर जो है ये इसी ऑर्डर को साइंस, उनका कहना है कि इसी ऑर्डर को, जिस ऑर्डर में हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस रिलेशनशिप को, आइडियाज के रिलेशनशिप को जो ये ऑर्डर बनाते हैं, इसी को साइंस जो है रिवील करती है टाइम टू टाइम। यानी ऑर्डर्स जो हैं, आइडियाज फॉर्म द ऑर्डर एंड द ऑर्डर्स फॉर्म द आइडिया ऑफ द गुड। उस कहते हैं कि आइडियाज जितने भी हैं वो ऑर्डर बनाते हैं और आपस में ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, और वो सारे ऑर्डर फिर एक बड़े आइडिया में, आइडिया ऑफ द गुड का एक सिस्टम है जिसमें वो जाके फॉल करते हैं, यानी हर चीज उसी में जाके गई होती है। तो आइडिया ऑफ द गुड जो है एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्शन है प्लेटो का, आइडिया ऑफ द गुड। ये समझ लीजिए कि जहाँ उनका कहना है कि एक आदमी अगर आइडिया ऑफ द गुड समझ गया है तो उससे वो सारी रियलिटीज को डिड्यूस कर सकता है, सारी फैक्ट को डिड्यूस कर सकता है, सारे जो है कंसेप्शन को वो डिड्यूस कर सकता है अगर उसने आइडिया ऑफ द गुड का परसेप्शन उसके पास है। तो ये उनका कहना है कि आइडियाज जो है आपस में ऑर्डर से जुड़े हुए हैं और ये सारे ऑर्डर आइडियाज ऑफ द गुड में फॉल करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, यानी उसी में सारे आइडियाज होते हैं और वहां से आप किसी भी आइडिया को डिड्यूस कर सकते हैं। और इसी सिस्टम को और इसी ऑर्डर को साइंस जो है वो टाइम टू टाइम रिवील करती है,
रिवील करती है, तो हम इसको साइंस के माध्यम से यानी चीजों को हम समझ ले रहे हैं। तो ये था प्लेटो का यानी आइडिया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ आइडिया, जो उन्होंने कहा कि आइडियाज क्या है और आइडियाज अल्टीमेटली रियल। अब आइए आप ह्यूमन नेचर के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर हम लोग क्योंकि हम मेटाफिजिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको, और जो हमारे लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है, हम 2-3 चीजों पर खास फोकस करते हैं इसमें मेटाफिजिक्स में। एक तो जो कंसेप्शन है कॉस्मोस का, क्या कंसेप्शन है, अल्टीमेट रियलिटी क्या समझती है ये फिलॉसफी। दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन नेचर को किस तरह से लेते हैं ये, और उसके फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, किस तरह से उसको एजुकेशनली देखा जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि तमाम आइडियलिस्ट जितने भी हैं वो सब समझते हैं कि मैन एक स्पिरिचुअल बीइंग, यानी मैन इज ए स्पिरिचुअल बीइंग हु एक्सरसाइजेज फ्री विल। फ्री विल भी मैंने डिस्कस किया है, उसके अंदर ह्यूमन नेचर जब हमने बताया था आपसे प्रॉब्लम्स, वहां पर हमने आपसे ये भी बताया था कि वेदर मैन इज फ्री और वेदर मैन इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पर प्लेटो का ये व्यू है। आइडियलिस्ट तमाम जितने थॉट्स थिंकर्स हैं सब ये समझते हैं कि ये मैन जो है वो फ्री है, यानी उसको फ्री विल हासिल है, वो जो चाहे कर सकता है, यानी जो कुछ भी चाहे उसके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें से कोई भी वो डिसाइड कर सकता है। और ये इसकी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो स्पिरिचुअल है। प्लेटो ये कहते हैं कि सोल जो हमारा है एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से इमेनेट हो रहा है, यानी वहां से आ रहा है, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है जहां से वो आ रहा है, और ये टेम्पररली ये एक बॉडी में इम्प्रिजन्ड है, यानी एक तरह से कैद है हमारी बॉडी में, यानी जो सोल है वो हमारी बॉडी में कैद है, और फिर जब डेथ हमारी होगी तो फिर ये अपने फॉर्मर हैबिटेट की तरफ वापस जाएगा। देखिए मैं कुछ और थिंकर्स को भी यहाँ पर मैंने लिया है ताकि आप समझ सकें कि क्लास किस तरह से फॉर्म करती है। सबका एग्रीमेंट इसके ऊपर है कि सोल इमोर्टल है, सोल स्पिरिचुअल है, और ये गॉड ने क्रिएट किया है, या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से ये आया है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये आया है। तो बर्कले भी ये कहते हैं कि सोल इज इमोर्टल which was created by God in order to enjoy eternal life with him after its probation in earth। बर्कले भी यही कहते हैं कि सोल इमोर्टल है, गॉड ने इसको क्रिएट किया है और इसको एक इटर्नल लाइफ मिलेगी जहां ये गॉड के साथ एंजॉय करेगी अपना लाइफ। इस जो प्रोबेशन पीरियड है अर्थ के ऊपर, प्रोबेशन है यानी एक टेम्परेरी पीरियड है, इसका एक लिमिटेड पीरियड है यहाँ पर अर्थ पर, उसको जब वो अपना गुजार लेगा तो उसके बाद वो फिर गॉड के साथ लौट जाएगा और गॉड के साथ अपना इटर्नल लाइफ को एंजॉय करेगा। तो बर्कले भी यही कहते हैं। अब आइए कंट के ऊपर। कंट कहते हैं कि मैन इज बोथ फ्री एंड डिटरमाइंड। मैन, यहाँ पर थोड़ा सा कंट ने जो है प्लेटो से और दूसरे क्लास के लोगों से डिसएग्री किया है। वो कहते हैं कि मैन फ्री भी है और डिटरमाइंड भी है। वो कहते हैं कि जहां तक ये स्पिरिचुअल है, यानी इसका जो स्पिरिचुअल रल्म है, स्पिरिचुअल जो साइड है इसका, वो तो इसका फ्री है, और जो इसका यानी जो मटेरियल साइड है, यानी मटेरियल साइड है वो डिटरमाइंड है। और वो डिटरमाइंड किससे है? वो कहते हैं कि ये फिजिकल लॉ से है, नेचुरल लॉ से है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बॉडी हमारा स्पिरिट है और बॉडी है, तो स्पिरिट पर हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो हमारे स्पिरिट को बहुत हद तक प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन बॉडी को तो प्रभावित कर ही देता है। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो तो हमको, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो नेचुरल लॉ है, वो तो हमारे बॉडी को प्रभावित कर देता है और उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो कांट कहते हैं कि नहीं, ये जो यानी जो हमारा स्पिरिचुअल रेलम है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, साइड है, उसमें तो हम फ्री हैं, लेकिन हम अपने फिजिकल डायमेंशन में हम कहीं ना कहीं डिटरमाइंड है नेचुरल लॉ से। फिजिकल यानी एनवायरनमेंट से, नेचुरल लॉ से हम डिटरमाइंड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम यानी एक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कांट का ये व्यू था। अब हिगल पर आइए। मैंने हिगल की बात थोड़ी सी पहले भी की कि हिगल क्या कहते हैं कि ये इंसान क्या है, ये दिस इज अ फ्रैगमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट, अ स्पार्क एज इट वेयर ऑफ द इटर्नल स्पिरिट इनटू व्हिच ही इज रीअब्सॉर्ब्ड। कहते हैं कि हिगल कहते हैं कि ये इंसान क्या है, ये इटर्नल स्पिरिट जो है, जिसको वो गॉड का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट माइंड, इटर्नल स्पिरिट है नहीं, वो कह रहे हैं कि वो उसका एक फ्रैगमेंट है, एक स्पार्क है, और फिर वो अल्टीमेटली उसी में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा।
यानी वो वापस वहीं जाएगा, फिर वापस उसी तरह चला जाएगा। इस तरह से ये इसका नेचर है। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटो को भी देखा आपने, हीगल को भी देखा, कांट को भी देखा, है नहीं, इन सब को देख रहे हैं आप, बार्कले को देखा आपने। ये सारे ये कह रहे हैं, इन सब का एक जगह एग्रीमेंट जरूर है, ये सब मान रहे हैं कि मैन का जो स्पिरिचुअल इसेंस है उस पर सबका एग्रीमेंट है, कि सब मानते हैं कि मैन स्पिरिचुअल है नहीं। लेकिन जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि वो कैसे जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअल रियलिटी से, जो अल्टीमेट रियलिटी है स्पिरिचुअल रियलिटी, जहां से वो निकला है उससे वो कैसे जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। बट सारे आइडियलिस्ट ये एग्री करते हैं कि मैन स्पिरिचुअल है, उसकी रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल है नहीं, और उसका डेस्टिनेशन भी जो है ये वर्ल्ड नहीं है, बल्कि आइडिएशनल वर्ल्ड है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अल्टीमेट डेस्टिनी। तो अल्टीमेट डेस्टिनी भी जो है इसका वही है, इसलिए वहां ये लौट के जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो ह्यूमन नेचर का कंसेप्शन है। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि प्लेटो का स्पेशल रेफरेंस देना है, इसलिए मैं आपको कुछ प्लेटो के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं आपको। प्लेटो तो ये मानते ही हैं कि हमारा बॉडी दो चीजों से बना हुआ है, बॉडी एंड सोल, मैटर एंड स्पिरिट। बट वो कहते हैं कि स्पिरिट जो हमारा है वो सुपीरियर सब्सटेंस है, यानी स्पिरिट इज अ सुपीरियर सब्सटेंस, इज स्पिरिचुअल एंड इमॉर्टल। प्लेटो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ जो इविल टेंडेंसीज जुड़ी हुई हैं वो एक्चुअली उस मैटर का एस्पेक्ट है, जिस मैटर में हमारा ट्रांसलेशन हुआ है, यानी जिस मटेरियल रूप में हमारा ट्रांसलेशन है फिजिकल वर्ल्ड में, उसकी वजह से हमारे अंदर इविल टेंडेंसीज आई है। वरना जो हमारा स्पिरिट है, जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है, वो तो गॉडली है, वो बिल्कुल गॉडली है। और जब गॉडली होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई इविल टेंडेंसी नहीं होगी, गॉड परफेक्ट है अपने आप में, यानी उसके अंदर ब्यूटी ही ब्यूटी है, उसके अंदर यानी अच्छाई ही अच्छाई है। तो वहां पे तो कोई इविल टेंडेंसीज आने का नहीं है, प्रश्न नहीं है। लेकिन जो मटेरियल हमारा पार्ट है उससे हमारी इविल टेंडेंसीज, उससे डिजायर्स जुड़ी हुई हैं, इससे इविल टेंडेंसीज, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिससे हमको ये चीजें आती हैं। अब एक चीज यहाँ पर कहते हैं वो प्लेटो कहते हैं कि जो हमारा सोल है, यानी एक तो दो बात हो गए, बॉडी एंड सोल। सोल के बारे में वो कहते हैं कि सोल के अंदर 3 फैकल्टीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आगे जो इनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो भी उसी तरह से है। सोसाइटी से उसको उन्होंने कोरिलेट भी किया है कि किस तरह से सोसाइटी का फंक्शन है और किस तरह के लोगों को करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज समझने की है। तो प्लेटो ये कहते हैं कि हमारे, यानी अगर आप आइडिया लेते हैं कि कंसेप्शन ऑफ मैन लें, तो पहली बात तो ये हो गई कि बॉडी एंड सोल। अब सोल के अंदर वो कहते हैं कि सोल हमारा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर 3 फैकल्टीज हैं। द फर्स्ट इज रीजन फैकल्टी, द सेकेंड इज स्पिरिट फैकल्टी एंड थर्ड इज एपेटाइटिव फैकल्टी। यानी जो हमारा सोल है उसके अंदर 3 फैकल्टी है। एक रीजन है, यानी जहां से हम किसी चीज को रीजन करते हैं, यानी हम तर्क वितर्क करते हैं, यानी हमको जो है कोई डिसीजन लेने में हम उसका उपयोग करते हैं। और स्पिरिट हमारी है, यानी ये जो है हमारा जो भी राह सुझाता है रीजन हमको, उस पर जो है हम एक तरह से खड़े होने का, एक तरह का विल पावर जिसको कहिए आप, विल पावर। स्पिरिट जो है ये हमारा विल पावर, ये कितना स्ट्रांगली उन डिसीजंस को जो रीजन फैकल्टी हमें देता है उसको हम कितना स्ट्रांगली और विलफुल्ली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये स्पिरिट फैकल्टी है नी। और ये रीजन हमें सुझाता है कि हमें किस तरह एक्ट करना चाहिए, और स्पिरिट हम उस पर हमको एक्ट करने के लिए हमको एक तरह का यानी विल प्रोवाइड करता है, डिसीजन हम जो हो गया है रीजन का उसके अकॉर्डिंग। और तीसरी फैकल्टी एपिटाइटिव फैकल्टी है, इससे डिजायर्स जुड़े हुए है नहीं। अब देखिए 3 फैकल्टी है, इसी 3 फैकल्टी के अराउंड उन्होंने जो अपना सोसाइटी का भी फंक्शन बताया वो इसी के अकॉर्डिंगली है। वो कहते हैं कि ये 3 जो यूनिवर्सल नेचर मैन का है वो यही है, लेकिन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली रीजन फैकल्टी किसका कितना स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है।
यानी उसके अकॉर्डिंगली ही इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। हम कितना रीजन कर पाते हैं। किसी आदमी का रीजन फैकल्टी बहुत स्ट्रांग होता है, यानी वो तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर सकता है, उसका इंटेलिजेंस काम कर रहा है बहुत, यानी चीजों को वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, समझ रहा है, अच्छाई बुराई सबको समझ रहा है, प्रॉस एंड कॉन्स को समझ रहा है, और फिर वो कोई डिसीजन ले रहा है। दूसरी चीज होती है स्पिरिट, जो विल मैंने आपसे कहा, और फिर एपिटाइट है। किसी का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, यानी उसको आप एक्ट करने के लिए कहिए वो एकदम एक्ट करेगा, वो बहुत दिमाग नहीं लगा सकता, लेकिन वो एक्ट करने के लिए हमेशा तैयार है, एक्ट करने के लिए वो तैयार है हमेशा। तो इस केस में क्या है कि हम जब देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही विलफुल है, यानी वो एक्ट कर सकता है, लेकिन लेकिन उसके पास रीजन नहीं है, हमको ऐसे आदमी को कहाँ उपयोग करना चाहिए। तीसरा एपेटाइटिव फैकल्टी जिसका स्ट्रॉन्ग है, यानी डिजायर्स। एपेटाइट का मतलब डिजायर्स हैं, उससे डिजायर्स जुड़े हुए हैं, इच्छाएं जुड़ी हुई हैं उससे, यानी बहुत सी चीजें जो हम लोग इच्छा करते हैं। अब जाहिर है जिसके अंदर इच्छा होगी तो क्या करता है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चीजों को इकट्ठा करता है, जिस तरह की इच्छा है उस तरह की। तो ये जो है, इस तरह के लोगों के लिए प्लेटो ने ये कहा था कि इस तरह के लोगों को प्रोडक्शन में लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग हैं, ये प्रोडक्शन का काम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सोसाइटी में जो प्रोडक्शन का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस तरह के लोग जिनका एपेटाइट फैकल्टी स्ट्रांग है, डिजायर्स स्ट्रांग है, वो ये काम कर सकते हैं। जो पहला क्लास है जिसका रीजन फैकल्टी स्ट्रांग है, वो सोसाइटी के अंदर वो काम कर सकता है जो रूल फ्रेमिंग का काम है, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो लोग करें जो जिसका रीजन फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है, और जिसका विल फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिट फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है। वो क्या करे, वो काम करे जो मिलिट्री करती है हमारे, यानी मिलिट्री फंक्शन जो है, यानी यानी उसके साथ जो क्लास है, जो क्लास है उसको उसके साथ जो क्लास है वो यानी इसको कहते हैं, वो कहते हैं ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरीज यानी मिलिट्री क्लास, वो उनके अंदर जो है चीजों को, या हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव क्लास, जो जो डिसीजंस को, लेजिस्लेटिव्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये तीन फंक्शन वो कर सकते हैं। रश्मि ये पूछ रही हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन एसेंस ऑफ आर्कीटाइप अगेन, यानी ये आर्कीटाइप जो है ये एक तरह का फॉर्म है। जैसे आप समझ सकते हैं किसी चीज को, ये जो यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे किसी चीज का प्रोफॉर्मा समझें आप, किसी चीज के प्रोफॉर्मा में कोई चीज मोल्ड किया ढाला जाता है ना। ये कहते हैं कि आइडियाज उसी तरह से हैं। ये मैंने आपसे कहा था वहां पे कि आइडियाज जो हैं वो इसेंस हैं ऑफ आर्कीटाइप, यानी वो जो मोल्ड है उसका एक तरह से वो इसेंस है, उसका जिस्ट है, उसका आदर्श है, उसका एब्सोल्यूट है, उसका यूनिवर्सल का है, आप जो भी वर्ड डिफरेंट का वर्ड यूज करते हैं वो, और उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल चीजों को ढाला जाता है। ये मतलब है उसका कहने का, इसेंस का, यानी। तो हम लोग यहाँ पे आ रहे थे कि हम समझते हैं ये चीज क्लियर होगी कि हम इसको एक, यानी आइडियाज को इमैटेरियल मोल्ड मानते हैं। इमैटेरियल मोल्ड एक स्ट्रक्चर, एक समझ लीजिए प्रोफॉर्मा मान लीजिए आप समझने के लिए, जिसमें हम चीजों को ढाल सकते हैं, जिसमें चीजों को बना सकते हैं। तो आइडियाज जो है वो इमैटेरियल मोल्ड्स हैं, ये कहने का सेंस है। और वो आदर्श भी हैं, जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्सल्स भी हैं, यूनिवर्सल्स भी हैं। हम बात कर रहे थे ह्यूमन नेचर की, कि ह्यूमन नेचर पर इन्होंने प्लेटो ने क्या कहा। तो प्लेटो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो सोल है उसके अंदर 3 फैकल्टीज हैं, रीजन फैकल्टी, स्पिरिट फैकल्टी एंड एपिटाइटिव फैकल्टी। और ह्यूमन नेचर के अंदर ये चीज कॉमन है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इनके अंदर जो एबिलिटीज है, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उसके अकॉर्डिंगली ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। स्पिरिट के अंदर या एपेटाइट के अंदर भी डिफरेंसेस होती हैं लेवल के, और उसके हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। प्लेटो का कहना यह है कि जो सोशल क्लासेस फॉर्म करती हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, उनके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से होती हैं। और मैंने वहां पे एक चीज लिखा है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एनी फैकल्टी, किसी फैकल्टी का कितना डोमिनेंस है उसके ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं गलबा, उर्दू में कहते हैं गलबा है, यानी कितना किसी के ऊपर वो चीज
ज्यादा यानी प्रीडोमिनेंस उसका हो रहा है, यानी वो चीज उसके ऊपर ज्यादा हावी हो रही है। मतलब यानी मैंने आपसे बताया कि किसी के ऊपर रीजन फैकल्टी हावी है। रीजन फैकल्टी का हावी होना, प्रीडोमिनेंस का मतलब क्या है कि उसका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, वो हर चीज में क्वेश्चन करता है, हर चीज पर वो थिंकिंग लगाता है, हर चीज के ऊपर वो रैशनैलिटी लगाता है, वो देखता है कि भाई इसके पीछे क्या रीजन है, हम क्यों इस चीजों को कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये रीजन फैकल्टी स्ट्रांग हो, मैंने आपसे कहा कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए जो सोशल क्लासेस हैं, सोसाइटी का जो कंसेप्शन मैंने आगे दिया है उसके आगे प्लेटो का, उसमें 3 क्लासेस, 3 फंक्शन है सोसाइटी के, और उसी से 3 क्लासेस इमर्ज होती हैं, जिसमें एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है। और लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए वो व्यक्ति ज्यादा सुइटेबल है प्लेटो के नजदीक जिसका रीजन फैकल्टी और इंटेलिजेंस फैकल्टी बहुत यानी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी हो, या उसका प्रीडोमिनेंस हो उसके ऊपर। अब आइए दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्पिरिट फैकल्टी जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव जो है का फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जहां वो रूल को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, वो काम उसके लिए ज्यादा सुइटेबल है। और तीसरा, जिसके ऊपर, जिस आदमी के ऊपर एपेटाइटिव फैकल्टी बहुत यानी प्रीडोमिनेंस है उसका, तो उसको प्रोडक्शन के अंदर लगाना चाहिए। ये प्लेटो का व्यू पॉइंट है। तो सोशल क्लासेस जो फॉर्म करते हैं, उनका कहना यह है कि वो इसी तरह फॉर्म कर जाते हैं जो जिस आदमी के साथ जिस चीज का प्रीडोमिनेंस है, जिस पावर का, उसके हिसाब से सोशल क्लासेस फॉर्म करते हैं। मैं आपको अब आ जाऊं प्लेटो के कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर। मैंने एक बात तो उसके साथ बीच में कह दी है। तो सोसाइटी का जो कंसेप्ट, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोल का ह्यूमन बीइंग के कंसर्न में, यानी रीजन, विल यानी स्पिरिट एंड एपेटाइट, उसी तरह वो कहते हैं कि सोसाइटी का भी 3 का, कोई भी सोसाइटी का अगर कहीं कोई कंसेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर कोई सोसाइटी कहीं है, ये कहने का सेंस है कि अगर कोई सोसाइटी कहीं एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर ये 3 फंक्शन जरूर होंगे। ये मतलब है जब हम कहते हैं आइडिया ऑफ ए सोसाइटी, इस सोसाइटी का आइडिया क्या है, तो प्लेटो कहते हैं कि सोसाइटी का आइडिया ये है कि सोसाइटी अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वहां 3 फंक्शन जरूर होंगे। यानी एक तो उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यानी वहां पर रूल फ्रेमिंग भी हो रही होगी। मिलिट्री फंक्शन है, वहां पर जो है जो रूल फ्रेम होते हैं सोसाइटी के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग भी होंगे वहां पे जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरी चीज सोसाइटी की जो है वो इकोनॉमिक फंक्शन है, जो प्रोडक्शन और उससे जो उसके यानी डिलीवरी से रिलेटेड है चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो ये इकोनॉमिक फंक्शन है, चीजों को प्रोड्यूस करना और उसको लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों। ये जो चीजें हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और इसी से 3 क्लास प्लेटो कहते हैं कि वो इमर्ज करता है। जो इकोनॉमिक फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शन से इकोनॉमिक फंक्शन जो है उससे ये बात समझ में आ रही है कि ये एपेटाइट फैकल्टी जिसका स्ट्रांग है, एपेटाइट मींस डिजायर। मैंने आपसे कहा शुरू की, फिर पूछ रही है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मींस डिजायर, है नहीं, ये डिजायर जहां पे एपेटाइट, ऐसे ऐसे तो हम लोग जनरल सेंस में आप इसको लेते हैं तो लगता है भूख, यानी मानिए इसका ये होता है कि भूख लगी है हमें। ये भूख क्या है, ये एक्चुअली डिजायर है, हमारी डिजायर्स है। तो ये एपेटाइट फैकल्टी ये डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, जितने काइंड्स के डिजायर हमारे पास है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। और डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए चीजों की आवश्यकता होती है, ये बात तो आप समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया, प्लेटो ने ये कहा कि जिनका डिजायर यानी एपेटाइट फैकल्टी स्ट्रांग है, उसको उसको अगर आप प्रोडक्शन में लगाएंगे, क्योंकि डिजायर का फुलफिलमेंट चीजों के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, और वो जब तक उसको लगाएंगे उसके अंदर, तो फिर वो चीजें, अच्छी चीजें प्रोड्यूस भी करेगा वो, और फिर उससे लोगों के की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, उसकी अपने डिजायर्स का फुलफिलमेंट भी होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि एपेटाइट फैकल्टी के लोग यानी इकोनॉमिक फंक्शन के अंदर, प्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर सोसाइटी के लगे। तो सोसाइटी का 3 फंक्शन हुआ, इकोनॉमिक फंक्शन, मिलिट्री फंक्शन यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और तीसरा हुआ लेजिस्लेटिव फंक्शन, रूल फ्रेमिंग का। अब इसी से 3 क्लास इमर्ज करते हैं। जो इकोनॉमिक फंक्शन दे रहे हैं उसको उन्होंने कहा आर्टिजन क्लास। आर्टिजन क्लास यानी यानी आर्टिजन्स आर दोज who are engaged in the production and distribution of the wealth यानी and things, जो भी कह रहे हैं आप,
ये आर्टिजन क्लास है। दूसरा है ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरीज आर दीज आर द एग्जीक्यूटिव क्लास और मिलिट्री क्लास, यानी they perform the any implementation of the rules which are framed by the legislatives, यानी the third class legislative function which perform the legislative function, जो रूल फ्रेम करते हैं, they are called the guardians according to Plato. They are the guardian class, यानी तो guardians rule frame the rule, and auxiliaries or executives or military class यानी implements the rule, and artisan class यानी performs the production of things and its distribution, which we can call economic function, यानी so they perform the economic function. So you can see how Plato has systematically and logically and correlated the human nature with the nature of the society. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्लेटो ने यहाँ पर सुझाई है हम सबको, कि लोगों का नेचर डिफरेंट है, किसी के अंदर रीजन स्ट्रांग है, किसी के अंदर एपेटाइट स्ट्रांग है, और किसी के अंदर विल पावर स्ट्रांग है, तो उससे उचित काम कौन सा लिया जा सकता है, ये जो है आप उसको कर सकते हैं उसके माध्यम से। और फिर उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से सोसाइटी के अपने कंसेप्शन से उसको कोरिलेट किया। अब इस पर कुछ बहुत सारी बातें, इस पर कुछ क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लेकिन ये आइडिया अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग आइडिया है। अब हम एजुकेशन पर जब आएंगे तो हम बताएंगे आपको। वहां पर उन्होंने जो बात कही है, प्लेटो पहला आदमी है जिसने यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात। वो कहते हैं कि सबको एजुकेशन दिया जाए एक सर्टेन लेवल तक, कंपल्सरी एजुकेशन सबको देनी। मानी वो कंपल्सन का मतलब ये नहीं कि वो कहते हैं कंपल्सन में जबरदस्ती, बल्कि वो कहते हैं कि एजुकेशन सबको प्रोवाइड किया, हर क्लास को, कोई डिफरेंस नहीं किसी क्लास का, यानी हर क्लास के बच्चों को एजुकेशन एक सर्टेन लेवल तक, एलिमेंट्री एजुकेशन जो उनका करिकुलम है, कहते हैं कि वो सबको प्रोवाइड किया जाए, और फिर उस एबिलिटीज को इवेल्युएट किया जाए, चेक किया जाए कि कौन सी एबिलिटी यहाँ पर उसका प्रीडोमिनेंस उसके अंदर। अगर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी स्ट्रांग है तो उसको आगे की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, अदरवाइज वहां से उसको डाइवर्ट किया जाए। अगर किसी का इंटेलेक्चुअल फैकल्टी स्ट्रांग नहीं है तो उसको फिर प्रोडक्शन के लिए लगाने के लिए जो दूसरे माध्यम है एजुकेशन के, जो वोकेशनल एजुकेशन है, उधर दिया जाए। और किसी को, कुछ लोगों को मिलिट्री, जिसका विल पावर स्ट्रांग हो, उसको मिलिट्री फंक्शन में डाला जाए। तो इस तरह से वहां से डाइवर्ट कर दे, यानी हायर क्लास, यानी हायर जो एजुकेशन है वो सिर्फ उन लोगों के लिए सजेस्ट करते हैं जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो। ये मतलब है उनके कहने का। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, उनके बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस नहीं। वो भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनको अगर सुविधाएं प्रदान की जाएं तो वो बहुत ऊंचा जा सकते हैं। तो प्लेटो का ये कहना है कि एजुकेशन, शुरू की एजुकेशन सबको प्रोवाइड की जाए और उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को टेस्ट किया जाए। हम लोग बाद में इसके डिटेल पर फिर आएंगे जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पर आएंगे, लेकिन मैंने बीच में एक बात ये इसलिए कह दी था कि आपको ये ध्यान रहे कि हम जो ये बातें कर रहे हैं मेटाफिजिकल थॉट के ऊपर, और हम आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर, आइडिया ऑफ सोसाइटी, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है एजुकेशनल, ये बात हमें ध्यान में रहे। तो हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं कि सोसाइटी का क्या कंसेप्शन है प्लेटो का। अब आइए आप, तो यहाँ पे एक बात हमारी कंप्लीट हो रही है, और वो ये है कि जो मेटाफिजिकल डायमेंशन था, मेटाफिजिकल डायमेंशन को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, यानी मेटाफिजिकल डायमेंशन यहाँ पे कवर हो गए हैं। यानी हमने कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यूनिवर्स को प्लेटो क्या कहते हैं, कि एक यूनिवर्सल सिस्टम है, एक रैशनल सिस्टम है या आइडियाज का, और आइडियाज के रूप में वो चीजों को देख रहा है। आइडियाज यहाँ पर अल्टीमेटली रियल है। हमने आपसे ह्यूमन नेचर भी बताया, हमने आपसे सोसाइटी का कंसेप्शन क्या प्लेटो को वो भी बताया। तो ये सारी चीजें जो मेटाफिजिकल कंसर्न था हमारा, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। हमारी रियलिटी हमें समझ में आ गई, वर्ल्ड की रियलिटी हमें समझ में आ गई कि ये स्पिरिचुअल है, हमारी रियलिटी ये स्पिरिचुअल है, और हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो आइडिएशनल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो वी आर टेम्परेरली हियर इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन को, थ्योरी ऑफ नॉलेज। कि प्लेटो थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या कहते हैं,
और दूसरे आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, इस पर हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप देखें कि सारे आइडियलिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि माइंड इज कंसर्न्ड इंटीमेटली विद द वर्ल्ड अराउंड इट। मैंने आपसे पहले भी कहा इस चीज को कि आइडियाज को आप माइंड से ही परसीव कर सकते हैं, माइंड से परसीव कर सकते हैं, है नहीं, और इसको आप सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते। स्पिरिट जो है, यानी जो अल्टीमेट रियलिटी है इस वर्ल्ड की, उसको आप माइंड से ही परसीव कर सकते हैं, है नहीं। ये सेंस, अदर सेंस ऑर्गन से हमारा इसका हमको रियल परफेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो चीजें अपने आप में रियल नहीं है। तो सारे आइडियलिस्ट ये एग्री करते हैं कि माइंड इज कंसर्न्ड इंटीमेटली विद द वर्ल्ड अराउंड इट। इट इज एन एक्टिव एजेंट दैट एनालाइजेज एंड सिंथेसाइजेज एनी इवेंट और ऑब्जेक्ट दैट इट एनकाउंटर्स। जितनी चीजें हमारे इसमें यानी सामने आती हैं, जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, उन तमाम चीजों को माइंड हमारा परसीव करता है नहीं। ये एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, चीजों को एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, और उसके बारे में एक आइडिया हमारे अंदर फॉर्म करता है। तो ये चीज है कि हम माइंड से चीजों को समझ सकते हैं, है नहीं। और ये जो लर्निंग हमारी है नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चीजों को किसी आइटम ऑफ नॉलेज, सिलेक्टेड आइटम ऑफ नॉलेज को एब्जॉर्ब कर लें। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि आप चीजों को यानी सिर्फ देख लें, सिलेक्टेड आइटम ऑफ नॉलेज को आप एब्जॉर्ब करने सीख लें। सिर्फ लर्निंग यही नहीं है, बट क्या है, इट इज पर्सनली एक्सप्लोरिंग द रियलिटी दैट इज अराउंड अस एंड विद इन अस। हमारे अंदर जो रियलिटी है और हमारे अराउंड जो रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं चीजों की, उसको हम एक्सप्लोर करें माइंड के थ्रू, है नहीं, माइंड के थ्रू हम लोग उसको हम लोग एक्सप्लोर करें। यहाँ एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लेटो का एक और आइडिया है जो आपको बहुत आपने शायद नहीं उसको सुना हो या पढ़ा हो। उसका एक आइडिया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस मैंने इसको शायद वहां पर मेंशन नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस, कुछ आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि चीजें जो हम परसीव कर रहे हैं, उसकी रियलिटी जो हमारे सामने है, जो चीजों को हम देख रहे हैं, उसको हम इसलिए समझ पा रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में वो हमारे आसपास में थे, अराउंड में थे। जब हम बिफोर कमिंग टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आने से पहले, जब हम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में खुद मौजूद थे और वहां पे और भी चीजें मौजूद थी आइडियाज के फॉर्म में, तो हमारा उनसे जो है कहीं ना कहीं इनकाउंटर हुआ है, और वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम जब चीजों को देखते हैं तो माइंड से हम उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को। ये एक पार्ट भी है आइडिया जो प्लेटो की थॉट का, जो उसको कहते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस यानी याद की चीजें, जैसे पिछले जन्म की चीजें याद होती है इंसान को, कहते हैं कि ये चीजें याद, तो वो कहते हैं कि जो आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जो है हम चीजों को हमने देखा है आइडियाज के फॉर्म में, तो उसको हम इसी तरह से समझ पाते हैं। जब हम देखते हैं कि वो चीजें हमारे सामने हैं तो हम उस चीज को याद करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे आइडियलिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि वो कहते हैं कि टू नो इज टू रीथिंक द लैटेंट आइडियाज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माइंड। वो हमारे यानी जो चीजें हम यानी जानना क्या है एक्चुअली, ये सोचना है उन आइडियाज के ऊपर जो हमारे माइंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से। और ये कहाँ से आए? ये उसी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से आए, उसी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से आए जहां हम पहले थे। सो टू नो इज टू रीथिंक द लेटेंट आइडियाज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माइंड। हमारे माइंड में ऑलरेडी वो आइडियाज प्रेजेंट हैं, और इसलिए हम उन चीजों को समझ पाते हैं उन आइडियाज के रेफरेंस में। तो एक तो ये बात हुई जो यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब आइए आप इसके आगे हम लोग एक चीज ये डिस्कस करते आए हैं कि हम सही नॉलेज तक कैसे पहुंचते हैं, सही नॉलेज तक कहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज की हम बात करते रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज में आप देखें, प्लेटो ये कहते हैं कि रीजन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। रीजन है नहीं, इस थॉट को हम लोग कहते हैं रेशनलिज्म। रेशनलिज्म, so Plato believes in rationalism. Idealists believe most of the idealists, they believe in rationalism. When we say rationalism, it means
रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज और अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी आप तर्क वितर्क के जरिए ही सही ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, यही अल्टीमेट सोर्स है, फाइनल सोर्स है नॉलेज का। अब आप इसको कोरिलेट कीजिए, आप फिर उसी मेटाफिजिकल थॉट से कोरिलेट कीजिए। यहाँ पे एक चीज ये समझिए, आप जब आपने ये कहा, हमने अगर आप इस आइडियलिस्टिक थॉट को हमने अगर समझ लिया है तो हम ये समझ सकते हैं जो चीजें हमारे सामने हैं वो अल्टीमेटली रियल नहीं है, वो तो मटेरियल ट्रांसलेशन है उन आइडियाज का जो एग्जिस्ट कर रहा है आइडिएशनल वर्ल्ड में, है नहीं? जो चीज हमारे सामने है वो मटेरियल ट्रांसलेशन है, वो रियल नहीं है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के देखें उसके ऊपर कि जो चीज रियल नहीं है हमारे सामने, उसको देख करके जो ज्ञान प्राप्त होगा वो रियल कैसे हो सकता है? ये सिंपल सी बात है कि जो चीज रियल नहीं है हमारे सामने, जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो रियल नहीं है अल्टीमेटली, बट के उसका आइडिया अल्टीमेटली रियल है। तो जो चीज हमारे सामने है वो रियल नहीं है, तो उसको देख करके, उसको परसीव करके जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसके बारे में, वो रियल कैसे हो सकता है? वो तो रियल होगा ही नहीं, क्योंकि चीजें ही रियल नहीं है नहीं? तो हमको क्या करना है? वहाँ प्लेटो कहते हैं कि हमको फिर क्या करना चाहिए? जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हमें धोखा दे सकती हैं, बिकॉज दे आर द इम्परफेक्ट इम्बॉडीमेंट और इम्परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दोज आइडियाज विच आर प्रेजेंट इन द आइडिएशनल वर्ल्ड, यानी वो आइडिएशनल वर्ल्ड में जो चीजें हैं उसका वो इम्परफेक्ट इम्बॉडीमेंट है, इम्परफेक्ट ट्रांसलेशन है। तो जो चीजें हैं उसको देख करके जो ज्ञान होगा हमारा वो भी इम्परफेक्ट ही होगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि उसके ऊपर अपना दिमाग लगाना चाहिए, हमें अपना रीजन लगाना चाहिए, अपने रैशनल फैकल्टी को अप्लाई करना चाहिए। जब हम रीजन लगाते हैं, आप देखिए, आप एक रॉड में पानी के अंदर एक रॉड डालते हैं, बिल्कुल रॉड बिल्कुल सीधी सी होती है बिल्कुल, लेकिन जब आप देखते हैं उसको तो आपको लगता है कि वो रॉड टेढ़ी है। तो सेंस हमको क्या कह रहा है? सेंस ऑर्गन हमें क्या कह रहा है कि वो रॉड तो टेढ़ी है नहीं? लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम उसके ऊपर रीजन अप्लाई करते हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो रॉड सीधी है, ये टेढ़ी है नहीं, है नहीं? तो रीजन जो है हमारा काम करता है। बहुत सी चीजें हैं, आप इसको एग्जाम्पल पर सेट कर सकते हैं जहाँ पे हमें सेंस ऑर्गन्स धोखा देते हैं, असल चीज जो हमको होती है वो समझ में नहीं आती। तो चीजों की जो रियलिटी है वो रीजन से समझ में आती है। इसलिए प्लेटो ने ये कहा कि रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी इट मीन्स ही बिलीव्स इन रैशनलिज्म। इस चीज को याद रखिए, ये जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड है एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंड, जहां हम ये कहते हैं कि रीजन चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसी स्टैंड को हम एक शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, वो है रैशनलिज्म। यानी हम अगर ये कहें कि मैं बिलीव करता हूं कि रीजन चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज है, देन आई कैन से सिंपली दैट आई एम अ रैशनलिस्ट, यानी हम इतना कह दें तो मेरी बात वही होगी कि मैं रीजन में बिलीव करता हूँ कि रीजन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब आइए, प्लेटो कहते हैं कि जो है, यानी इसी बात को प्लेटो ने ये कहा कि ट्रू नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ रीजन एलोन, कि सही ज्ञान क्या है? ये सिर्फ रीजन का प्रोडक्ट है। एंड टू से ट्रूथ लाइज इन द आइडियाज ऑफ द रीजन और नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड। आप ये कह सकते हैं दूसरी तरह से इसको भी कि ट्रूथ कहाँ है? ट्रूथ कहाँ स्टैंड कर रहा है? वो आइडियाज ऑफ रीजन में स्टैंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक बात फिर से देखिए, ये फिजिकल वर्ल्ड में ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है फिजिकल वर्ल्ड में, बल्कि वो आइडियाज ऑफ रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। एक बात मैं फिर लौटाऊं, कितनी बहुत यानी बात है, इस पर आप दिमाग थोड़ा सा लगा लें। मैंने आपसे ये कहा था शुरू में कि आइडियाज आर अल्टीमेटली रियल, आइडियाज आर अल्टीमेटली रियल। आप देखिए, अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, और जब आप देखेंगे, गौर करेंगे कि जो भी रीजन होता है, आप कोई भी आर्गुमेंटेशन करें, रीजन करें और लगाएं, आप आर्गुमेंटेशन करें, वो कोई ना कोई आइडिया ही होता है, वो कोई ना कोई आइडिया ही होता है। तो आप फिर यहाँ देखें, अल्टीमेट सुप्रीमेसी ऑफ आइडिया, यहाँ पर भी वही बात है कि रीजन जो है वो हमको एक आइडिया देता है नहीं? रीजन हमें एक आइडिया देता है। तो हम ये यहाँ पर वही उस बात को फिर यहाँ दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज। इसी को प्लेटो ने क्या कह दिया फिर कि ट्रूथ कहाँ करता है? ट्रूथ लाइज इन द आइडियाज ऑफ द रीजन एंड नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड। यानी ट्रूथ कहाँ लाई करता है? ये आइडियाज ऑफ रीजन में लाई करता है, ये फिजिकल वर्ल्ड में लाई नहीं करता। एंड दिस स्टैंड इज कॉल्ड रैशनलिज्म। मैंने फिर इसको रिपीट किया इसको, ये इसी को हम रैशनलिज्म कहते हैं।
ये तो प्लेटो की थॉट है एपिस्टेमोलॉजिकल। अब आइए आप दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट ब्रांड है रैशनलिज्म का, इसका आइडियलिज्म का, वो हीगल का है, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। उसको मैं आपसे डिस्कस करूँ क्योंकि उसके कुछ इम्प्लीकेशंस आने वाले भी हैं। हम लोग इसको आगे जब कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट पढ़ेंगे, कम्युनिज्म, वहां पर भी ये चीज आएगी, और इसलिए भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं हीगल को। तो हीगल जो है एक अच्छा यानी एक एब्सोल्यूट आइडियलिज्म उनकी जो थॉट है कहलाती है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। तो वो कहते हैं क्या कि नॉलेज जो है, जैसे इन्होंने कहा कि रीजन हमको सही नॉलेज देता है, ये हीगल ये कहते हैं कि नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स ए सिस्टम। यानी नॉलेज उस वक्त तक वैलिड है जब तक ये एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है। यानी knowledge is valid to the extent that it forms a system since reality itself is a system। अब देखिए फिर लौटिए उस रियलिटी की तरफ। रियलिटी जैसे हीगल ये कहते हैं कि रियलिटी क्या है, एक सिस्टम है। जैसे मैंने आपसे कहा था, प्लेटो ने भी कहा कि ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर सिस्टम बनाता है थोड़ा। तो ये हीगल ये कहते हैं कि रियलिटी एक सिस्टम है नहीं, और एब्सोल्यूट रियलिटी जो है वो सिस्टम है, एक तरह का एक यूनिफाइड सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्रैगमेंट ऑफ नॉलेज उस वक्त तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि ये कोई सिस्टम ना बना डाले। यानी वो किसी सिस्टम का पार्ट हो, किसी सिस्टम का पार्ट अगर वो बन जाता है, यानी वो सिस्टम का आधार बन जाता है या किसी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, तभी उसको हम वैलिड मानते हैं। यानी उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है कोटेशन है, जो मैं आपको याद रखना चाहिए। उसका एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो बहुत बहुत ही मशहूर है लोगों के दरमियान, खास तरह से जो लोग फिलॉसफी के लोग हैं, जो उनके दरमियान ये बहुत मशहूर है। वो कहता है फैक्ट्स मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, नेवर इन आइसोलेशन। फैक्ट्स मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, नेवर इन आइसोलेशन। यानी फैक्ट्स को जो है वो एक कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखिए, उसको एक यानी होल के एक रेफरेंस में देखिए, एक सिस्टम के रेफरेंस में देखिए। आप होल के रेफरेंस में जब देखते हैं तब उसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आता है, तब समझ में आता है। इसलिए उसने ये कहा, और उसने इसीलिए कहा कि नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स ए सिस्टम। इसी बात को उसने उस तरह से कहा कि नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स ए सिस्टम। यानी कोई भी नॉलेज तभी तक वैलिड माना जाएगा जब वो एक सिस्टम बना रहा हो या सिस्टम का पार्ट हो। इसी बात को दूसरी तरह से उसने ये कहा कि फैक्ट्स मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, यानी नेवर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में नहीं देखिए उसको, आप देखिए। अब देखिए जैसे आप किसी भी पोएम को ले लें, आप, मैं इसको एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहा हूँ। एक पोएम के किसी दो कपुलेट को ले लें आप, और उसको अलग करके देखें आप। अलग करके जब आप देखेंगे, यानी सुजाता ये पूछ रही है, इज एब्सोल्यूट रियलिटी डिफर फ्रॉम रियलिटी और बोथ द सेम? रियलिटी जो है एब्सोल्यूट भी से एब्सोल्यूट रियलिटी, मैंने पहले भी कहा कि हीगल जो है एब्सोल्यूट रियलिटी गॉड के लिए यूज करते हैं, गॉड के लिए यूज करते हैं। यानी जो टर्म है इनका, इसीलिए उनकी उनकी जो फिलॉसफी है वो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म भी कहलाती है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। तो एब्सोल्यूट रियलिटी जब वो यूज करते हैं तो वो इस यूनिवर्स की जो हाईएस्ट रियलिटी है उसके बारे में यूज करते हैं, यानी। लेकिन रियलिटी जो है, ये तो मैंने आपसे कहा कि ये रियलिटी जो है ये इस यूनिवर्स की भी रियलिटी है और हमारी भी रियलिटी है। तो हर चीज को, यानी ऑब्वियसली श्रुति से एब्सोल्यूट रियलिटी इज स्पिरिचुअल, ऑब्वियसली, यानी आइडियलिस्ट से दैट एब्सोल्यूट रियलिटी इज स्पिरिचुअल, यानी ये तो सही है, यानी ये सही है। ये तो बात मैंने शुरू में भी कही है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है जो वो स्पिरिचुअल है, और हम लोग उसका एक फ्रैगमेंट है, स्पिरिचुअल है। तो ऑब्वियसली जो एब्सोल्यूट रियलिटी है इस वर्ल्ड की वो स्पिरिचुअल है और हम उसका एक फ्रैगमेंट है। तो हम नहीं समझते इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल मैंने पहले क्लियरली इस बात को बताया है, यानी कि जहाँ पर इम्पर्सनल और पर्सनल गॉड की बात हो रही है, कि जो स्पिरिचुअल आइडियलिस्ट हैं वो क्लियरली गॉड का नाम लेते हैं वो, लेकिन जो दूसरे आइडियलिस्ट हैं
इम्पर्सनल जो बिलीव करते हैं वो एब्सोल्यूट रियलिटी या एब्सोल्यूट माइंड इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। एब्सोल्यूट माइंड, एब्सोल्यूट रियलिटी इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। और वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल है यहाँ पे, इसमें कोई इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम तो शुरू में ही कह चुके हैं इस बात को। पहला सेंटेंस जो हमारा था वो यही था कि आइडियलिज्म जो है वो बिलीव करती है स्पिरिचुअल रियलिटी में, स्पिरिचुअल रियलिटी में। सो रियलिटी इज स्पिरिचुअल रादर देन यानी फिजिकल, मेंटल रादर देन मैटेरियल। ये बात तो मैंने शुरू में कह दी है, तो इसलिए कोई भी रियलिटी जो यहाँ होगी वो स्पिरिचुअल ही होगी। वो तो समझने की चीज है। हम आ गए थे यहाँ पे हीगल के एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन। हीगल के एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन में हम ये बात कह रहे थे आपसे कि हीगल ने ये कहा कि नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स ए सिस्टम। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि उन्होंने ये कहा, जो उनका एक फेमस डायलॉग है कि फैक्ट्स मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, नेवर इन आइसोलेशन। तो आप इस तरह से देखें, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था आपसे कि अगर किसी पोएम के एक दो कपुलेट को आप अलग करके देखें और उसकी मीनिंग को आप समझने का प्रयास करें और पूरे पोएम को आप अलग रख दें, तो आप उसकी मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग तक आप नहीं शायद पहुंच पाए, क्योंकि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं मिस करेगा आप, है नहीं, कहीं ना कहीं आप उसको मिस करेंगे, है नहीं। तो इसी चीज को आप समझिए कि जहां उस कपुलेट का उस पूरे पोएम के अंदर कहीं ना कहीं उसकी एक पोजीशन है, वो एक उसका पार्ट है, और उस टोटल पोएम के अंदर उसका जो एक अपना सिग्निफिकेंस है, उसको अगर आप सामने रख के देखते हैं तब आपको वो चीज समझ में आएगी कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में पोएट ने एक बात कही है। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझिए कि कोई भी फ्रैगमेंट ऑफ नॉलेज है वो किसी न किसी सिस्टम का पार्ट होगा। ये जो है ये हीगल कहते हैं, वो किसी न किसी सिस्टम का पार्ट होगा। और अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, जैसे आप इसी बात को, जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था कि एब्सोल्यूट रियलिटी की बात हुई। अगर गॉड एब्सोल्युटली रियल है एंड वी आर द फ्रैगमेंट्स, हम अगर फ्रैगमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते अगर हम गॉड को से अपने आप को अलग करके देखें। इसका ये इम्प्लीकेशन अगर आप समझ सकेंगे तो बहुत खूबसूरत इम्प्लीकेशन है इसका कि गॉड इज द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी एब्सोल्यूट रियलिटी, एंड वी आर द फ्रैगमेंट्स, we are the spark of that particular any reality. So we can't understood ourselves in actual and real sense unless and until we relate ourselves to the God. जब तक हम उसको उसके जोड़ के नहीं देखेंगे, अपनी रियलिटी को भी हम नहीं समझ सकते, अपने सेल्फ को भी हम नहीं समझ सकते। इसलिए भी जरूरी है आपको गॉड से रिलेट करके एब्सोल्यूट रियलिटी से जोड़ के देखें, बिकॉज हम उसी सिस्टम का एक पार्ट है। अब मैं समझता हूं कि इस एग्जाम्पल से भी आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि हीगल क्या कहना चाहते हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो अगर आप किसी इंसान की जो स्पिरिचुअल रियलिटी है उसको आप समझना चाहते हैं, अपने सेल्फ को समझना चाहते हैं, खुद अपने बारे में समझना चाहते हैं, तो आप अपने आप को गॉड जो स्पिरिचुअल हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलिटी एब्सोल्यूट माइंड है, उससे अपने आप को रिलेट करके ही देख सकते हैं, उससे अलग करके नहीं देख सकते आप। अब इसका दूसरा इम्प्लीकेशन भी जो मैं आपको बताऊंगा, इसका दूसरा इम्प्लीकेशन है सोशल इम्प्लीकेशन, जो आगे आएगा। इथिकल फिलॉसफी में भी एक चीज आएगी, इथिकल फिलॉसफी में भी ये चीज आएगी कि हीगल ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम है, सोसाइटी एक सिस्टम है और इंडिविजुअल उसका एक पार्ट है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने आप को रियलाइज करना चाह रहा है, सोशली रियलाइज करना चाह रहा है, तो सोसाइटी से अपने आप को अलग करके नहीं देख सकता, सोसाइटी से अलग करके नहीं देख सकता, बिकॉज सोसाइटी फॉर्म्स द सिस्टम एंड इंडिविजुअल इज इट्स पार्ट। सो इंडिविजुअल कैन नॉट बी एनी सीन एनी सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी। उसको अलग करके आप नहीं देख सकते, आप उससे अलग करके आप उसको नहीं समझ सकते, और उसकी कोई भी वैल्यू तब तक वैल्यू नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो सोसाइटी का पार्ट न बने, सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट ना हो। तो सोसाइटी से हट करके इंडिविजुअल का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है जब तक कि सोसाइटी से अपने आप को वो रिलेट न करे। ये भी है इसका मतलब कि पार्ट मस्ट बी व्यूड, कहीं वो यूज किया पार्ट मस्ट बी व्यूड, कहीं फैक्ट मस्ट बी व्यूड, मैं उसको यूज कर देता हूँ, पार्ट मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, नेवर इन आइसोलेशन। तो अगर आप इंडिविजुअल को एक पार्ट समझते हैं सोसाइटी का, और समझना भी चाहिए और है भी, रियलिटी भी यही है
तो उसको सोसाइटी से अलग हटके हम नहीं देख सकते। ये भी उसका एक इम्प्लीकेशन है जो आगे आ जाएगा, एक्सियोलॉजिकल थॉट के अंदर आएगा। तो हम बात कर रहे थे एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन में, हमने दो बातें आपसे कही। जो एक बात मैंने पहली कही थी वो प्लेटो के संदर्भ में कही कि प्लेटो ये कहते हैं कि रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, और हीगल ये कहते हैं कि ये इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स ए सिस्टम। ये जो थ्योरी है हीगल की, इसको हम लोग कहते हैं फिलोसफिकल टर्म में कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये ध्यान रहे, ये थ्योरी ये कहलाती है, जो सिस्टम की जो थ्योरी है कि जो जो पार्ट जो है वो सिस्टम के के रूप में यानी से मिला के उसको देखा जाए। तो ये जो बात है, इस थ्योरी को कहते हैं कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज। कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, दो थ्योरी हमने आपसे बताई, रैशनलिज्म एंड कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज। रैशनलिज्म गिवन बाय प्लेटो एंड कोहेरेंस थ्योरी गिवन बाय हीगल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पे हीगल की थी। अब एक बात और आपको मैं बताऊं, हीगल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है। हीगल की एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारी थॉट मूव करती है, थॉट जो हमारी मूव करती है, और जो हम सर्टेनिटी किसी भी आइडिया के तई जो सर्टेनिटी हम लेते हैं अपने आप, पोजीशन, सर्टेन पोजीशन हम लेते हैं, उस पोजीशन को लेने में भी हमारे हमारे स्टेजेस हैं, और 3 स्टेजेस उन्होंने कहा है उसके बारे में, और वो है थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। ये इसको उन्होंने डायलेक्टिक मेथड है उनका, डायलेक्टिक, हीगल का डायलेक्टिक मेथड है, और इसको लिफ्ट किया है कम्युनिज्म में। इसी 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 एस्पेक्ट को कम्युनिज्म ने लिया है इनसे, हीगल से बोरो किया है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, ये इसी डायलेक्टिक्स की हिस्ट्री है, यानी थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस की ही हिस्ट्री है। जो स्ट्रगल है हिस्ट्री के अंदर, उसी को हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। एनीवे, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस बात की कि थॉट जो हमारी मूव करती है और हम किसी सर्टेनिटी की तरफ, आइडियाज की सर्टेनिटी की तरफ बढ़ते हैं। हीगल का एक बात ये भी कहना है कि उसमें ये 3 स्टेजेस आते हैं। पहला है थेसिस। थेसिस मीन्स आइडिया, एनी आइडिया, एनी आइडिया। हम लोग जैसे पीएचडी की थेसिस लिखते हैं तो क्या करते हैं, वो थेसिस क्या है एक्चुअली, वो कोई आइडिया हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। तो थेसिस मीन्स आइडिया। तो एक आइडिया इमर्ज करता है हमारे पास, वो आइडिया जो है फिर उसकी सिंथेसिस होती, वो क्या होता है कि उसके कुछ ही बाद हमको एक उसका एंटी आइडिया भी सामने आ जाता है, एंटी थेसिस सामने आ जाता है, और एंटी थेसिस होती है उसकी, जिसको कहते हैं उसका नेगेटिव आइडिया। नेगेटिव आइडिया आ गया, अब नेगेटिव आइडिया वो कंट्राडिक्ट होता है दोनों आपस में, यानी एक आइडिया है और एक उसका नेगेटिव आइडिया है, और फिर सडन आफ्टर सडन ड्यूरेशन क्या होता है कि हम उन दोनों के बीच एक सिंथेसिस कर लेते हैं। सिंथेसिस करके हम एक सर्टेनिटी तक पहुंचना चाहते हैं किसी किसी चीज के आइडिया के संदर्भ। तो ये है सिंथेसिस। इसीलिए उसने, आप इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे एक आइडिया है बीइंग। बीइंग, बीइंग मींस एग्जिस्टेंस, यानी किसी चीज का होना, बीइंग। दूसरा उसका नेगेटिव आइडिया भी हो सकता है, नथिंग, यानी नॉन एग्जिस्टेंट, नहीं, कोई चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही है। हम कह सकते हैं कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, और नेगेटिव आइडिया है कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब देखिए, बीइंग एंड नथिंग, ये 2 आइडिया हो गए, एक हो गया आइडिया, एक हो गया एंटी आइडिया। अब इसकी सिंथेसिस क्या है, बिकमिंग, यानी वो इमर्ज कर रहा है, यानी एग्जिस्टेंस का रूप ले रहा है, यानी बिकमिंग, यानी इट इज, यानी मूविंग टुवर्ड्स, यानी परफेक्शन, वो परफेक्शन की तरफ, एग्जिस्टेंस की परफेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये है सिंथेसिस। इस तरह से हम आइडिया का सिंथेसिस करते हैं। अब आप देखिए, जैसे आप पॉलिटिकल आइडियाज पे ही लीजिए, पॉलिटिकल आइडियाज पे लीजिए, सोशलिज्म। सोशलिज्म इज एन आइडिया, डेमोक्रेसी इज अनदर आइडिया। आप देखेंगे जितना सोशलिज्म है, आप शुरू की सोशलिज्म देखेंगे जो स्टेट सोशलिज्म है, स्टेट सोशलिज्म की जो बात हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखें पुरानी, तो वो बिल्कुल अथॉरिटेरियनिज्म था। आप चाइना को देखें, आप रशिया को देखें, जहाँ पे जो ये जो आया था सोशलिज्म, वो एक अथॉरिटेरियनिज्म के रूप में आया, यानी स्टेट सोशलिज्म कहते हैं उसको,
कि वो ऐसा सोशलिज्म जहाँ पे यानी फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। आज भी चाइना के अंदर देखें, वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशलिज्म आया था बहुत, यानी एक मूवमेंट की शक्ल में, वहाँ पे क्या थी कि इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं था। स्टेट का जो है वो वर्चस्व जिसको कहते हैं ना, वो वर्चस्व वहाँ बना हुआ था। ये एक आइडिया है नहीं। अब उसके बाद दूसरा आइडिया क्या आया? डेमोक्रेसी, जहाँ फ्रीडम है नहीं, हर आदमी को फ्रीडम है। ये नेगेटिव आइडिया उसका मान लीजिए आप, या आप अगर इसको आइडिया मानते हैं डेमोक्रेसी को, तो उसको मान लीजिए नेगेटिव आइडिया, यानी सोशलिज्म को मान लीजिए। फिर देखिए दोनों की सिंथेसिस क्या होती है, पर्टिकुलरली इन आवर कॉन्टेक्स्ट, दिस इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, democratic socialism. So this is synthesis of both the idea, yani socialism and democracy, and it became democratic socialism. यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ फ्रीडम भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल कंसर्न भी है, यानी हमारी जो सोसाइटी की हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको भी हमें निभाना है, यानी और जो सोशल कंसर्न है उसको भी निभाना है हमें, और साथ साथ फ्रीडम को भी हमें मेंटेन रखना है, इस चीज को करना है। ये एक तरह का, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये हीगल की थॉट जो है कि आइडियाज की तरफ हम किस तरह से बढ़ते हैं, सर्टेनिटी की तरफ, और किस तरह से हम चीजों को अडॉप्ट करते हैं। फिर क्या होता हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वही जो सिंथेसिस था वो फिर एक आइडिया बन जाए, और फिर उसी को एंटीथेसिस इमर्ज हो जाए, और फिर कोई सिंथेसिस आए उसकी। इस तरह से ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। ये जो प्रोसेस है थॉट का, इसको उन्होंने कहा कि ये डायलेक्टिक है, डायलेक्टिकल प्रोसेस है। ये डायलेक्टिकल प्रोसेस है, इसलिए डायलेक्टिक्स कहलाता है ये। और ये हीगल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने दिया है, डायलेक्टिक्स यानी थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो आपको मैंने हीगल की दो बातें बताई इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये बताई कि उन्होंने कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया। कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज ये कहता है कि यानी पार्ट मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, है नहीं। दूसरी बात ये है उसको, यानी नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट, इसको हम नॉलेज के रूप में कह रहे हैं कि नॉलेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स ए सिस्टम। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि थॉट जो है डायलेक्टिकल प्रोसेस से हमारे यहाँ बनती है या मैच्योर होती है, या अब उसके सर्टेनिटी की तरफ जाते हैं। ये था उसका यानी एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन। अब आप चलें आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से एक्सियोलॉजी की तरफ, यानी थ्योरी ऑफ वैल्यूज की तरफ। आज हम लोग यहाँ तक चलेंगे, इसको यहाँ तक यानी फिलोसफिकल डायमेंशन को ही टच कर लेंगे। और जो 24 का हमारा सेशन है उसमें हम लोग इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, लेक्चर तो लंबा हो चुका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो फिलोसफिकल डायमेंशन है वो कंप्लीट हो जाए आज। तो ये फिलोसफी हम लोग आ रहे हैं, हमने पहले मेटाफिजिकल डायमेंशन डिस्कस किया आपसे, रियलिटी का कंसेप्शन डिस्कस किया, फिर हमने नॉलेज का कंसेप्शन डिस्कस किया, जहां हमने आपसे बताया कि आइडियलिज्म रेशनलिज्म में बिलीव करती है नॉलेज के, और फिर हीगल का थॉट भी हमने आपसे बताया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सियोलॉजी की तरफ कि एक्सियोलॉजी यानी वैल्यूज के कंसर्न में प्लेटो क्या कहते हैं, या दूसरे जो थॉट्स हैं वो क्या कहते हैं, दूसरे जो थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि वैल्यूज जो है वो कल्चरल क्रिएशन नहीं, वैल्यूज कल्चरल क्रिएशन नहीं है। इस बात को आप समझिए कि मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आज के कंसर्न में खासतौर से जो प्रैग्मेटिक वर्ल्ड है और प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है, वो लोग ये कहते हैं कि वैल्यूज गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड है। यानी इंसान खुद जो है वैल्यूज को क्रिएट करता है, और जब इंसान क्रिएट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कल्चरल क्रिएशन। यानी ये हमारे कल्चर का क्रिएशन है, यानी ये जो है टाइम के साथ यानी जो है इमर्ज होगा, ये जो है रिलेटिव होगा, ये जो है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली बदलेगा भी, है नहीं, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली बदलेगा। तो वैल्यूज जो है, जो आज का जो प्रैग्मेटिक वर्ल्ड है वो वैल्यूज को परमानेंट नहीं मानता, वो उसको कल्चरल क्रिएशन मानता है, और वो देखता है कि वैल्यूज हमको क्या सिग्निफिकेंस बेनिफिट दे रहे हैं। अगर ये बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो ये वैल्यूज नहीं हमारे लिए, हमको वैल्यूज को बदलना चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल 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 यानी विपरीत कहिए आप, जो आइडियलिज्म के थिंकर्स हैं वो कहते हैं ये कि वैल्यूज जो हैं इस यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है। ये देख लीजिए आप, यानी
इस यूनिवर्स के वेरी एग्जिस्टेंस का जो है मैं ये डिपिक्टेड है वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज हमारे यहाँ हैं वो वैल्यूज इस यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है। हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसका मतलब क्या है कि इसके वेरी एग्जिस्टेंस में इनका हिस्सा है, इनका जो एग्जिस्टेंस में हिस्सा वो उसमें डिपिक्टेड है नहीं। और जब ये एग्जिस्टेंस में चले गए, इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बन गया, तो फिर क्या है, जब ये एग्जिस्टेंस में चले गए तो फिर ये परमानेंट होंगे, फिर ये डिपेंडेबल होंगे, फिर ये रिलायबल होंगे, ये अनचेंजेबल होंगे। इसलिए सारे वैल्यू जो जितने भी यानी थिंकर्स हैं इसके, यानी आइडियलिज्म के, दे ऑल से दैट वैल्यूज आर एन एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग पार्ट ऑफ रियलिटी। ये इस यूनिवर्स की रियलिटी के एब्सोल्यूट पार्ट हैं, अनचेंजिंग पार्ट है, एंड दे आर नॉट प्योरली कल्चरल क्रिएशंस बट आर पार्ट ऑफ द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी ये इसके यानी यूनिवर्स के का जो संरचना है उसका बिल्कुल उसके हिस्सा है ये वैल्यूज। इसलिए इन वैल्यूज को हम परमानेंट मानते हैं, एब्सोल्यूट मानते हैं, अनचेंजिंग मानते हैं, डिपेंडेबल मानते हैं, रिलायबल मानते हैं। आप जो भी वर्ड इस तरह के यूज कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि वैल्यूज आर परमानेंट, वैल्यूज आर अनचेंजेबल, वैल्यूज आर डिपेंडेबल, वैल्यूज आर रिलायबल। यानी ये दे डू नॉट चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी, बट दे रिमेन यानी as it is, and without change, and they remain permanent for all time and for all society, because they are the part of the very structure of this universe. यानी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैल्यूज को आइडियलिस्ट इस यूनिवर्स की संरचना का हिस्सा समझते हैं और इसीलिए वो उसको कहते हैं कि ये परमानेंट है, ये रिलायबल है, ये डिपेंडेबल है, ये बदलते नहीं है समय के साथ। जो चीज हमारे पूर्वजों के लिए अच्छी थी वही हमारे लिए भी अच्छी है और वही आगे वालों के लिए भी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं होगी, या जो चीज हमारे पूर्वजों के लिए अच्छी थी वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, बल्कि जो चीज उनके लिए अच्छी थी वही हमारे लिए भी अच्छी है, और जो चीज उनके लिए बुरी थी वो हमारे लिए भी बुरी है। यानी ये सेंस है कहने का कि वैल्यूज परमानेंट है। दूसरी बात जो एक्सियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स के अंदर जो दूसरी बात है वो कहते हैं कि फैक्ट्स एंड वैल्यूज, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, रियलिटीज हैं इस वर्ल्ड की, और जो वैल्यूज हैं, ये मिल करके एक मोरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं, एक मोरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं। यानी फैक्ट्स एंड वैल्यूज टुगेदर फॉर्म ए मोरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड दे एक्सप्रेस ए सिंगल रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज हैं, मोरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज हैं और जो इस यूनिवर्स की जो फैक्ट्स हैं वो एकदम एक दूसरे से गुथे हुए हैं, बिल्कुल उनको अलग भी नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रियलिटी से बिल्कुल जुड़ी हुई है चीजें, वैल्यूज की चीजें रियलिटी से, फैक्ट से जुड़ी हुई हैं चीजें, एंड दे एक्सप्रेस ए सिंगल रियलिटी, जिसको उन्होंने कहा है कि ये एक मोरल वर्ल्ड ऑर्डर है, मोरल वर्ल्ड ऑर्डर है। अब आइए दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जो इस यूनिवर्स के अंदर जो इविल्स नजर आते हैं, इविल्स नजर आते हैं, ये तो इसकी बात है कि जो वैल्यूज हैं वो हर जगह हैं और परमानेंट हैं, डिपेंडेबल, रिलायबल हैं। लेकिन दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि जो इस वर्ल्ड में इविल्स हैं, बुराइयां हैं, यानी अगलीनेस है, जो कुछ भी है, इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये एक तरह से देखें आप कि ये सिस्टम के अंदर एक कमी रह गई है, एक डिसऑर्गेनाइजेशन है। यानी सो दे एक्सप्लेन द इविल्स इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ सिस्टम स्टिल प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ये एक तरह से इनकम्प्लीट गुड है, यानी इविल क्या है, अगलीनेस क्या है, इट्स एन इनकम्प्लीट गुड, यानी ये अभी उस परफेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाया है जहां इसको जाना चाहिए, लेकिन इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी जो कुछ भी अगलीनेस नजर आ रही है, यानी वो जो नजर आ रही है इस वजह से कि वो अभी इनकम्प्लीट है, वो परफेक्ट रूप में जा नहीं पाया है, यानी वो परफेक्ट हो नहीं पाया है। यानी विभूति कुमार इज आस्किंग वैल्यूज आर अल्टीमेट रियलिटी, वैल्यूज आर अल्टीमेट रियलिटी। आप
एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं है। बात तो यानी यहाँ पर ये है, अगर आप इसको वैल्यूज के रेल्म में कहें तो ये बात सही है कि वैल्यूज जो है वो रियल है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी का मतलब अगर आप कहेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा आइडियाज से। आइडियाज से कंफ्यूजन होगा, आइडियाज से कंफ्यूजन होगा। इसलिए इसको अगर हम अवॉइड करें यहाँ पे कि वैल्यूज आर अल्टीमेटली रियल, तो ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन ला देगा रियलिटी से। इसलिए इसको हम यूज ना करें, बल्कि हम ये कहें कि वैल्यूज आर परमानेंट, values are not changeable, they are permanent, they are dependable, they are reliable, because they are the intrinsic part of this universe। यानी वो उस यूनिवर्स का हिस्सा है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संरचना का हिस्सा है, इसलिए वैल्यूज परमानेंट है नहीं, वैल्यूज चेंजेबल नहीं है, ये बदलते नहीं है, ये हमेशा रहते हैं, है नहीं, हमेशा रहते हैं। तो हम इसको अनचेंजेबल माने, हम इसको यानी अनचेंजेबल माने। हम अगर इसको रियलिटी कहेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होने लगेगा हमको इससे कि जो हम उस वर्ल्ड की रियलिटी है। हाँ, स्पिरिचुअल रेल्म में अगर इसमें एक्सियोलॉजिकल डिस्कशन में अगर हम कुछ वैल्यूज को मान लें अल्टीमेटली रियल, जैसे वो आइडियलिज्म में मानते हैं, जैसे ट्रूथ है, ब्यूटी है एंड गुडनेस है, जिसको कहते हैं कि दीज आर द ग्रेटेस्ट यानी वैल्यूज, यानी ग्रेटेस्ट रियलिटीज, ग्रेटेस्ट वैल्यूज। तो ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जिसको वो मानते हैं कि ये जो है यानी अल्टीमेट वैल्यूज हैं, यानी ऐसे वैल्यूज हैं जिसका कोई मटेरियल ट्रांसलेशन ही नहीं है नहीं, जैसे ट्रूथ का, ब्यूटी का, गुडनेस का कोई मटेरियल ट्रांसलेशन नहीं। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा वही कहेंगे कि इसको थोड़ा अल्टीमेट कहने से थोड़ा सा यहाँ पे हम परहेज करें, इसलिए इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है फिर मेटाफिजिकल डायमेंशन से, इसलिए हम उसको अवॉइड करने को कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको आप परमानेंट ही कहें कि values are permanent, values are intrinsic in nature, they are very intrinsic part of the structure of this universe। ये उसके यूनिवर्स के इसमें डिपेंड। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वैल्यूज इस यूनिवर्स की संरचना का इंट्रिंसिक पार्ट है। अच्छा, इंट्रिंसिक जब मैं कहता हूँ, इस बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही? इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कभी एग्जाम्पल भी दिया होगा कि रोज है, रोज की रोजीनेस, रोज जो फूल है गुलाब, उसकी क्वालिटी है रोजीनेस। रोजीनेस को आप उससे अलग नहीं कर सकते, आप उसके पेटल सेपल्स को तोड़ सकते हैं, है नहीं? हाँ, yes, values are part of the absolute reality। yes, this is right, we can say the values are part of the absolute reality। yes, ये सही है, ये तो कह ही रहा हूं मैं, these are intrinsic part of this universe। जो रियलिटी है उसका वो इंट्रिंसिक पार्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी का पार्ट है। अच्छा, अब मैं ये बात जो कह रहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू होने का मतलब क्या है, जो जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे रोज की रोजीनेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रोज से उसके पेटल्स को, उसके सेपल्स को तो अलग किया जा सकता है, लेकिन उसकी रोजीनेस की जो क्वालिटी है यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी क्वालिटी जो बिल्कुल उसके एग्जिस्टेंस में डिपिक्टेड है, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो गंध आती है रोज की, आप उसको उससे कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है ये उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है। बिल्कुल उसी तरह समझिए आप कि वैल्यूज इस यूनिवर्स का इंट्रिंसिक पार्ट है, आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। अब इसका एक इम्प्लीकेशन समझ लीजिए आप, ये हम हालांकि इसको डिसिप्लिन में मुझे डिस्कस करना होगा, जब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पर जाएंगे डिसिप्लिन में ये चीज आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे उस चीज को ला देता हूँ ताकि आप समझ जाएं इस चीज को। जब आप आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि कोई बच्चा जब डिसिप्लिन तोड़ता है, जब डिसिप्लिन करता है, क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, या अपनी क्लासरूम में कहिए, आप सोसाइटी के अंदर कहिए, कोई भी इंडिविजुअल जब इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो उससे न सिर्फ ये कि उससे आसपास के जुड़े हुए लोग इफेक्ट होते हैं, उससे न सिर्फ ये कि सोसाइटी इफेक्ट होती है, उससे न ये कि सिर्फ यानी जो हमारा सराउंडिंग है वो इफेक्ट होता है, बल्कि हम क्या करते हैं कि चूंकि वो वैल्यूज इसका पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट है यूनिवर्स का, हम उसकी संरचना पर, यानी वर्ल्ड की जो संरचना है, रियलिटी जो है, असल रियलिटी, उसको हम कहीं चोट पहुंचा रहे होते हैं। ये बात आपको अच्छी लगी अगर आप समझ रहे हो इस चीज को कि ये बात क्यों कही गई कि वैल्यूज उसका इंट्रिंसिक पार्ट है, कि अगर हम जो इटर्नल प्रिंसिपल है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल्स है जीने का वो इटर्नल है,
वो हमेशा रहेगा, वो इटर्नल प्रिंसिपल है। वैल्यूज आर इटर्नल, हम उसको हमेशा मानते हैं, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो हमको उस इटर्नल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जीना सीखना चाहिए। हमको उस वैल्यू सिस्टम को, जो मॉडल वर्ल्ड ऑर्डर हमने कहा कि फैक्ट्स एंड वैल्यूज टुगेदर फॉर्म द मॉडल वर्ल्ड ऑर्डर, उस वर्ल्ड ऑर्डर को समझने का प्रयास करना चाहिए और हमको उस इटर्नल प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करना चाहिए जिस पर ये वर्ल्ड डिपेंडेंट है। और अगर हम कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं तो सिर्फ हम नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को या आसपास के सराउंडिंग्स को या सोसाइटी को या समाज को हम नुकसान पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि इस यूनिवर्स की जो स्पिरिचुअल रियलिटी है उसको कहीं ना कहीं हम ठेस पहुंचा रहे होते हैं। ये बात हमें समझना चाहिए, ये इसका इम्प्लीकेशन है जो वहाँ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में भी एक दफा फिर आएगा सामने। तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक बात तो हम लोगों ने ये डिस्कस की कि वैल्यूज का क्या कंसर्न है आइडियलिस्ट का, और फिर इविल्स के बारे में वो क्या कह रहा है। मैं ये कह रहा था कि हर चीज यहाँ पे अच्छी है, आइडियलिस्ट कहते हैं हर चीज अच्छी है। आप जो कमी देख रहे हैं, यानी आप जो कुछ भी कमी देख रहे हैं उसके अंदर, वो एक्चुअली उस परफेक्शन की तरफ जा रहा है। जहाँ परफेक्शन में उसको मिल जाए अगर, तो वो चीज भी वैसे ही ब्यूटी है उसके अंदर, वैसे ही गुडनेस है जिसका आप एक एजम्पशन या जिसका कंसेप्शन आप एक आइडियाज के अंदर रखते हैं। तो हर चीज सुंदर है, कोई अगलीनेस नहीं है, हर चीज सुंदर है, हर चीज के अंदर ब्यूटी है, हर चीज के अंदर है और गुडनेस है। आप उसको माइंड से परसीव करें, उसको जब माइंड से आप परसीव करेंगे तो आप हर चीज आपको सुंदर नजर आएगी। उसके अंदर जो कुछ भी सिस्टम के अंदर लैकनेस नजर आ रहा है वो उसके इंटरनल, इसके अंदर जो कमी है कहीं, जहाँ डिसऑर्गेनाइजेशन है कुछ सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से नजर आ रहा है। तो इविल्स जो हैं, अगलीनेस, इविल्स, इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दे आर सिंपली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द ब्यूटी एंड द गुडनेस। वो ब्यूटी और गुडनेस को रियलाइज करने के लिए है, एक तरह से समझिए आप। आइडियलिस्ट का ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है कि ब्यूटी अपने आप में जो क्या है, ब्यूटी सब कुछ में, सब में ब्यूटी है। जो अगलीनेस देख रहे हैं वो लैक ऑफ सिस्टम है, और वो सिर्फ इसलिए है कि आप असल ब्यूटी को रियलाइज कर सकें। अगर अगलीनेस ना हो तो ब्यूटी कभी रियलाइज ना हो, कभी रियलाइज ना हो, है नहीं? तो ये गुडनेस कभी रियलाइज नहीं हो। ये चीजों को समझना चाहिए हमें, वो उसके रियलाइजेशन के लिए है। क्योंकि आइडियलिस्ट ये समझते हैं कि गॉड जो है, एब्सोल्यूट गॉड, जो एब्सोल्यूट माइंड है, वो अपने आप में परफेक्ट है। तो जो चीज उसकी बनाई हुई है उसमें उसमें अगलीनेस आने का तो कोई ये नहीं है। हाँ, अब आगे चूंकि वो डेवलपमेंट के फेज में है, वो बिकमिंग फेज में है, इसलिए जो कुछ भी सिस्टम के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ अगलीनेस या कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो असल स्टैंड नहीं कर रही है। वो सब चीज ब्यूटी ही ब्यूटी है। तो एक तो ये बात ही। तो हम अब एक बात ये कह रहे थे कि वैल्यूज के कंसर्न में उसका क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो है, हम एक प्रॉब्लम जो हम आपसे डिस्कस करते रहे हैं एक्सियोलॉजी के अंदर, व्हाट इज सम्मम बोनम ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है? व्हाट इज सम्मम बोनम ऑफ लाइफ? ये जो है हमारा प्रॉब्लम। आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज अ सम्मम बोनम ऑफ लाइफ। यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो है, ये जो है इस लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। सबसे बड़ा गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आदमी अपने आप को रियलाइज करे। और जब आप रियलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आपकी रियलिटी तो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल रियलिटी है। इसका मतलब क्या है? व्हेन वी से सेल्फ रियलाइजेशन, इट मींस दैट this is a spiritual self realization, a spiritual self realization, because our reality is a spiritual. So when we self realization, it means a spiritual self realization, यानी with reference to the idealist। यानी आइडियलिस्ट के रेफरेंस में अगर हम कहें सेल्फ रियलाइजेशन को, तो ये स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन होगा। यानी अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को, स्पिरिचुअल रियलिटी को हम रियलाइज करें। और इसको हम तब तक रियलाइज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है इस वर्ल्ड की, एब्सोल्यूट माइंड है, जब तक उससे हम अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, उससे जोड़ेंगे नहीं, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अपने जो हमारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज है उसको इनहांस नहीं करेंगे, तब तक हम इस सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते। और हम एक अच्छी लाइफ, हैप्पीनेस की लाइफ हम गुजार नहीं सकते दुनिया के अंदर। इसलिए जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो यहाँ इनके यहाँ सम्मम बोनम ऑफ लाइफ है। जो फिलोसॉफिकल टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, सम्मम बोनम ऑफ लाइफ। सम्मम बोनम मीन्स
हाईएस्ट गोल और हाईएस्ट गुड ऑफ द लाइफ, है नहीं, ये समम बोन ऑफ लाइफ है। तो आइडियलिस्ट से दैट सेल्फ रियलाइजेशन, इट मींस स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन इज द समम बोन ऑफ लाइफ। अब दूसरी बात जो है, वो जो मैंने हीगल के बारे में मैंने कही, और प्लेटो भी यही बात कहते हैं कि जो 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 अच्छी लाइफ है, गुड लाइफ है, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब सोसाइटी बिल्कुल सिस्टमैटिक चले, सोसाइटी का जो कंसेप्शन है वो अपने आप में काम कर रहा हो, इंडिविजुअल का जो कंसेप्शन है वो अपने आप में काम कर रहा हो। तो दोनों ये कहते हैं, प्लेटो एंड हीगल बोथ emphasize that good life is possible only in a highly organized political system. They say that good life is possible only in a highly organized political system. जब तक कि सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज और पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, हम इस गुड लाइफ को रियलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर जिस तरह के आदमी को जो फंक्शन परफॉर्म करना था उसी तरह से वो परफॉर्म करे। सोसाइटी के अंदर हर आदमी के अंदर जिस तरह की एबिलिटी थी उसके हिसाब से वो सोसाइटी को परफॉर्म अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, और सोसाइटी का हर ऑर्गेन अपने हिसाब से काम कर रहा हो। तब जब आइडियल सोसाइटी बनेगी, आइडियल जो हमारा हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, तब हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं और हम गुड लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अब इसको आप उससे प्लेटो की फिर उस थ्योरी से, जब मैंने पहले भी कहा कि हीगल ने ये कहा कि यानी पार्ट मस्ट बी व्यूड इन रिलेशन टू द होल, नेवर इन आइसोलेशन। तो यहाँ भी देखिए उस चीज को वो फिर कह रहा है इस तरह से कि हाईली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इंडिविजुअल उसका एक पार्ट है, जब तक वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा वो गुड लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए दोनों इस बात को मानते हैं, प्लेटो और हीगल दोनों मानते हैं इस बात को कि एक हाईली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम, हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, उसी के अंदर एक इंडिविजुअल अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकता है। इसलिए वो उन्होंने जो अपनी जो उनकी जो फिलॉसफी है प्लेटो की, वो तो आप जानते हैं कि उन्होंने एक आइडियल किंग, जो फिलॉसफर किंग है, उसको रूल करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा किंग जो फिलॉसफर हो, जो रैशनल हो बहुत हाईली, वो सोसाइटी को रूल करे, है नहीं, और उसके साथ जो उनके जो कैबिनेट के लोग हों, जो उनके सलाहकार हों, वो सारे रैशनल लोग हों, जिनकी रैशनल फैकल्टी बहुत स्ट्रांग हो, जो सही लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करें, और फिर जो जिनका विल पावर स्ट्रांग हो वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन दें सही, और जो लोग लोअर एबिलिटी के हैं, जिनका एपेटाइट फैकल्टी स्ट्रांग है, वो प्रोडक्शन में जाएं, वो जो इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करें, तब सोसाइटी सही ढंग से चलेगी और सोसाइटी आइडियल सोसाइटी होगी और उसमें अच्छी लाइफ आप व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात उन्होंने कही कि अगर आप इसको पॉलिटिकल सिस्टम को आप लूज करते हैं तो क्या होगा, कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, लोअर स्ट्रेटा से हमारा संबंध ये नहीं है कि जो कास्ट वाइज लोअर है, बल्कि हमारा यहाँ पर वो सेंस है जो प्लेटो ने कहा है कि जो इंटेलिजेंस वाइज लोअर है, यानी जिनकी रैशनल फैकल्टी स्ट्रांग नहीं है, एपेटाइट फैकल्टी स्ट्रांग है, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को हाईली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे अगर आप, तो वो क्या करेगा कि लोअर एबिलिटी का आदमी अपर स्ट्रेटा पर जाने के लिए मूव करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि हम लेजिस्लेटिव फंक्शन में चले जाएं। जिसका एपेटाइट फैकल्टी स्ट्रांग है वो चाहेगा कि हम लेजिस्लेटिव फंक्शन करें, वो हम वहां पहुंच जाएं, जैसा कि आजकल खूब हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, तो वो अब वहां जाएंगे, जिसको एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करना चाहिए फंक्शन, वो चाहेगा कि हम लेजिस्लेटिव में चले जाएं। इससे क्या होगा कि सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है इससे, और इससे जो है डिसऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर आती है, सोसाइटी जो है वो फिर उससे डिस्टर्ब होती है, और सोसाइटी के अंदर जो है फिर वो पीस नहीं रह पाता, सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। इसलिए इन्होंने ये बात कही कि एक हाईली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जहां हर इंडिविजुअल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने जो उसकी जिस फैकल्टी को वो का डोमिनेंस उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे तो वो सही सोसाइटी को कंस्टिट्यूट करेगा और सोसाइटी में अच्छे से लोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं अपना। तो ये एक बात थी जो इनकी फिलॉसफी है, एक्सोलॉजिकल फिलॉसफी, उस संदर्भ में, है नहीं। अब अब आइए मैं यहाँ पर फिर स्पेशल रेफरेंस आपको कुछ प्लेटो का दे दूं कि प्लेटो की जो एक्सोलॉजिकल थॉट है, ये मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग फिर
आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे और फिर हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को अगले लेक्चर में हम लोग उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक तो बात मैंने कुछ बातें तो मैंने कह दी कि प्लेटो के सेंस में प्लेटो ये कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जब मैंने समम बोनॉफ की लाइफ की बात की, समम बोनॉफ जो मैंने आपकी बात की कि सेल्फ रियलाइजेशन समम बोनॉफ लाइफ है, ये मैंने एज ए स्कूल बात की है। लेकिन अगर आप प्लेटो के कंसर्न में देखेंगे तो प्लेटो ये कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस क्लाइमैक्स बाय फाइनल यूनिटी विद गॉड इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल इंडिया। ये कहते हैं कि हैप्पीनेस को अचीव करना, लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को अचीव करना है नहीं। प्लेटो कहते हैं ये हैं, प्लेटो ये कहते हैं कि प्लेटो ये कहते हैं कि जो मैंने आपसे ये बात कही कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो यानी समम बोन ऑफ लाइफ है एज ए स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन प्लेटो का थॉट थोड़ा सा उससे अलग है। वो कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस यानी आदमी अपने हैप्पीनेस के स्टेज को प्राप्त कर ले, है नहीं, और उसमें वो ऐसा स्टेज हो जहां उसका यूनिटी गॉड से हो जाए, जहां गॉड से उसकी यूनिटी हो जाए, है नहीं। तब वो जो लाइफ है उसकी वो असल लाइफ है, वो उसका जो है अल्टीमेट एंडेवर है, समझ लीजिए अल्टीमेट गोल है लाइफ का, जहां हर काम जो कुछ भी वो कर रहा है अगर उसका ये उद्देश्य बन जाए कि उससे उसकी गॉड की यानी उसका उससे खुश हो जाए, गॉड से वो जुड़ जाए, गॉड से उसकी यूनिटी हो जाए, तो समझिए उसका वो काम सही है और उसी में उसको वो जो है हैप्पीनेस प्राप्त होगी। लेकिन ये हैप्पीनेस कब होगी? वो कहते हैं कि इसमें एक चीज उसको ख्याल रखना होगा कि उसको अपने डिजायर से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने डिजायर से उसको ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत सारी जो डिजायर्स हम पाल रखे हैं दुनिया के अंदर, एक जानते हैं कि डिजायर्स के अंदर, ये बात तो इसने रूसो ने भी कही थी कि जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा डिजायर्स हमने पाले हुए। अब जब हम डिजायर्स पाले हुए, जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा? फिर हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन ही होगा, हमारे जीवन में दुख ही दुख होगा, शिकायत ही शिकायतें होंगी, हम हर जगह हम शिकायत ही करेंगे, हम अपना दुख ही बताएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ? हम लोगों ने ये किया हुआ है कि जितनी हमारी शक्ति नहीं है, जितनी हमारी एबिलिटी नहीं है, उससे ज्यादा हमने डिजायर्स पाले हुए हैं। आवश्यकताओं से बढ़ हमने कदम आगे बढ़ाया हुआ है। जब आवश्यकताओं से आगे कदम बढ़ाते हैं हम, तो फिर डिजायर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसलिए प्लेटो ये कहते हैं कि वो जो गुड लाइफ है, वो जो हैप्पीनेस की लाइफ है, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जहां हम अपनी यानी सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो आनंद तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब अपने डिजायर से अपने आप को धीरे धीरे हम उठा लें ऊपर, उससे हम मुक्त हो जाएं। जो नेसेसरी डिजायर्स हैं वो तो रहें हमारे साथ जहाँ तक, लेकिन जो अननेसेसरी डिजायर्स हैं उन सबको हम कंट्रोल करते चलें और धीरे धीरे उससे हम ऊपर उठते चलें। जितना हम डिजायर से ऊपर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, उतना ही हम अपने जीवन में आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा और खुशी से हम जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। ये जो आनंद की प्राप्ति है, यही उनके यहाँ यानी सबसे बड़ा गोल है। प्लेटो के यहाँ इसको आप समम बोनॉफ कह सकते हैं, लेकिन एज ए क्लास मैंने उसको कंक्लूड ये किया था कि दिस इज ए स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन। ये तभी हो सकता है गॉड से जुड़ना जब आप उस स्टेज को प्राप्त कर लें, उस स्टेज को प्राप्त कर लें। तो ये है। और ये जो है ये एक प्लेटो ये भी कहते हैं कि पोसेशन ऑफ ए हेल्दी सोल, वन दैट हैज इंटरनल ऑर्डर एंड हार्मनी, इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द वर्च्यू। यानी एक हेल्दी सोल होना जरूरी है इंसान का, है नहीं, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्डर हो, हार्मनी हो। यानी आप अंदरूनी जो एक तरह का यानी यानी हार्मनी कहिए, आप उसको आप एडजस्टमेंट कहिए, इंटरनल ऑर्डर, है नहीं, उसको आप मेंटेन करके रखें, तभी आप जो है ये वर्च्यू का यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी समझ लीजिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट कहते हैं उसको। एक ऐसी चीज है जिसके बगैर वर्च्यू का कोई तस्वुर नहीं है नहीं। हेल्दी सोल होना चाहिए हमारा, है नहीं। और प्लेटो ये भी कहते हैं कि विजडम, फोर्टिट्यूड, टेम्परेंस, जस्टिस, ये सब मेन वर्चूज हैं। प्लेटो का कहना ये है कि ये सब सबसे हाईएस्ट वर्चू प्लेटो कहते हैं ये विजडम है नहीं, विजडम है। उसके बाद ये फोर्टिट्यूड कहते हैं, यानी फोर्टिट्यूड है यानी आप यानी किसी चीज को जिसको कहते हैं यानी सब्र कह सकते हैं उसको आप, पीड़ाओं को झेलने की जो क्षमता होती है हमारी, यानी फोर्टिट्यूड है। जैसे टेम्परेंस है, सेल्फ कंट्रोल है, जस्टिस है।
इन चीजों को प्लेटो ने बहुत यानी कार्डिनल वैल्यूज कहा है। इन वैल्यूज को जरूर लाना चाहिए हमारे में अपने अंदर। और वो कहते हैं, प्लेटो ये कहते हैं कि इन वैल्यूज तक फिर वो वही उसी बात को जो उनका रेशनल व्यू पॉइंट है, एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन, कि इन वैल्यूज को भी आप रीजन के माध्यम से ही समझ सकते हैं, रीजन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इनको आपको समझाना किसी के लिए आसान नहीं है। जब तक कि आप अपनी रेशनल फैकल्टी को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, आप इन वैल्यूज को भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए वो हमने वहाँ पे एक बात आपसे ये भी शेयर किया है स्लाइड के अंदर कि रीजन एलोन कैन लीड वन टू द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट गुड है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो मॉरल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको भी आप रीजन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जिसके अंदर रेशनल पावर स्ट्रांग है, यानी, और जो कार्डिनल वैल्यूज जिसके अंदर हैं बहुत ही, यानी अदर कार्डिनल वैल्यूज जिसमें उन्होंने विजडम कहा, फोर्टिट्यूड कहा, टेम्परेंस कहा, जस्टिस कहा, यानी तो ऐसे लोग ही हैं जिसको वो कह सकते हैं कि वो सारे लोगों के लिए वही लोग डिसीजन लें कि गुड सोसाइटी के लिए क्या हो। यानी यही वही जो पॉलिटिकल, जो मैंने आपसे कहा इसका कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका क्या बन रहा है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन यही बन रहा है इसका कि वो लोग जिनके अंदर ये कार्डिनल वैल्यूज हों, जिसको वो यानी रेशनैलिटी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ऑब्वियस है कि जब रेशनैलिटी जिसकी कमजोर होगी वो समझ नहीं पाएगा कि सोसाइटी के लिए असल गुड क्या है, यानी सोसाइटी का हाईएस्ट गुड क्या है, सोसाइटी को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये तो वही लोग समझ पाएंगे ना जिनके अंदर रेशनैलिटी हो। तो यही बात प्लेटो कह रहे हैं कि जो आप जो हाईएस्ट गुड है, जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं, उसको आप रेशनैलिटी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि जिनके अंदर ये रेशनल पावर स्ट्रांग हो, वही लोग सोसाइटी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए वही लोग इस चीज को यानी पॉइंट आउट करें, और वही लोग सोसाइटी के लिए रूल बनाएं, रूल फ्रेम करें, और वही लोग इस सोसाइटी के एलिट्स हैं, एलिट क्लास वही है। और वही लोग जो है वो रूलिंग क्लास है, जिसको लेजिस्लेटिव क्लास उन्होंने कहा, कि वो लोग उसके लिए रूल फ्रेम करें, वही उसकी राह सुझाएं, यानी। And it is the duty of the state, प्लेटो कहते हैं कि it is the duty of the state to educate its citizen in such a manner that true virtue will be inculcated in each and every one of them, and he also says that it is duty of the state to protect its citizen from evils। वो ये कहते हैं प्लेटो कि ये स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो सारे सिटीजन्स को यानी ईविल से, सोसाइटी यानी ईविल से बचाए, नुकसान से बचाए, तकलीफों से बचाए, यानी उनको 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 सफर होने से बचाए। ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आज के लोग भाग रहे हैं। आज के लोग सिर्फ अपना, जो लोग पॉलिटिकल चेयर्स पे हैं, वो सिर्फ अपने अपने पोजीशंस को एंजॉय करना जानते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या सोसाइटी का जो कंसर्न है वो हमारा कंसर्न होना चाहिए। ये प्लेटो कहते हैं कि नहीं, जो 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 रूलर्स हैं, जो एलिट क्लास है, जो लेजिस्लेटिव क्लास है, उनकी स्टेट जो है, जो स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के वेलफेयर में वो काम करें और सोसाइटी को इविल से बचाएं। और उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी में एक एक इंडिविजुअल को एजुकेट करें, और इस ढंग से वो एजुकेट करें उनको, सिटीजन्स को, जिससे जो ट्रू वर्च्यू है, जो सोसाइटी के लिए ट्रू वर्च्यूज हैं, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि विजडम, फोर्टिट्यूड, टेम्परेंस, जस्टिस एंड अदर वर्च्यूज, जो वर्च्यूज हैं वो उनके अंदर इनकलकेट हो। तो ये वर्च्यूज को इनकलकेट करना इंडिविजुअल्स के अंदर, ये भी सोसाइटी का कंसर्न होना चाहिए, और इसके लिए एजुकेशन एक माध्यम है जिसको अप्लाई करना चाहिए। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी हुई कि वो एजुकेशन के माध्यम से उन सारे वर्च्यूज को, उन वैल्यूज को जो इटर्नल हैं, जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो इनकलकेट करे सिटीजन्स के अंदर, ताकि सिटीजन जो है उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को रियलाइज करें, वो खुद भी अपनी अच्छी लाइफ इंजॉय करें, और सोसाइटी के लिए भी कोई किसी तरह का डिस्टरबेंस पैदा ना करें। और सोसाइटी और स्टेट की भी मैंने आपको बताई जिम्मेदारी, तो वो इविल से अपने सिटीजन्स को बचाएं। तो ये वैल्यूज थी, जो एक्सियोलॉजिकल वैल्यूज जो प्लेटो ने डिस्कस किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो क्लास था, आइडियलिज्म का जो क्लास है, उसमें हमने ये देखा कि सारे आइडियलिस्ट वैल्यूज को परमानेंट मानते हैं,
वैल्यूज को कल्चरल क्रिएशन नहीं मानते, जैसा कि प्रैग्मेटिस्ट मानते हैं कल्चरल क्रिएशन। आइडियलिस्ट ये मानते हैं कि वैल्यूज इस यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है, वो उस यानी अल्टीमेट जो स्पिरिचुअल रियलिटी है उसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी इसलिए ये परमानेंट है, ये जो है ड्यूरेबल है, ये डिपेंडेबल है, ये रिलायबल है, ये इटर्नल है, और हमको उन वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसमें सारे लोग एग्री करते हैं। सारे लोग ये एग्री करते हैं कि स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन हमारा स्पिरिचुअल यानी जो यानी समम वन ऑफ लाइफ होना चाहिए। प्लेटो स्पेशली ये कहते हैं कि हैप्पीनेस, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस with final unity with God, where it is the stage where at which we free ourselves from all kinds of unnecessary desires. This is the stage of happiness. ये हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम डिजायर से अपने आप को मुक्त कर लें, और तब हम एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। और इन वैल्यूज को समझना रीजन के जरिए ही पॉसिबल है, और इसीलिए जिनका रीजन फैकल्टी स्ट्रांग है वो सोसाइटी को सही राह दिखाएंगे। ये था हमारा जो एक्सियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स, जो है जिसके इम्प्लीकेशंस हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो हाँ, हमने कंक्लूड किया आपसे आइडियलिज्म का वो फिलोसफिकल डायमेंशन, कि आइडियलिज्म क्या चीज है, इसका बेसिक कंसर्न क्या है। इसका बेसिक कंसर्न स्पिरिचुअल है, इसका बेसिक कंसर्न जो है मेंटल है, और इसीलिए इसको कहते हैं कि हम यानी स्पिरिट एंड माइंड जो है यहाँ डोमिनेट करता है, यानी आइडियाज डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। फिर हमने आपसे वो सारे जो थिंकर्स हैं उनको मैंने आपको कोट किया, और फिर हमने आपको मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड एक्सियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कंसर्न में जो इनके व्यूज हैं वो भी हमने आपसे शेयर किए। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आज की खत्म हो गई हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि इसके ये जो मैंने आपसे फिलोसफिकल थॉट डिस्कस किए हैं, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस किस किस तरह से होते हैं। ये असल चीज इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल जब हम लोग किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे या फिलोसफी को पढ़ें, किसी इंडिविजुअल को भी फिलोसफी को पढ़ें, तो हम ये जरूर पढ़ें कि उसका मेटाफिजिकल थॉट क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट क्या है, और उसका एक्सियोलॉजिकल थॉट क्या है। फिर उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं एजुकेशन में समझ में आते हैं, और फिर हमको ये भी समझ में आएगा कि इस फिलोसफी को पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, जो मैं कभी कभी क्लास में कहता हूँ आप लोगों से, मैं यूं ही ये बकवास नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, बल्कि इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जिसे आपको समझना चाहिए, है नहीं। मैं समझता हूँ ये बातें पूरी हो चुकी हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो अभी भी पूछ सकते हैं आप चैट में, नहीं तो फिर मैं आप कहें तो मैं इस क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो आप कह सकते हैं। I think all of them are satisfied, and there is no question. All are saying thank you and sir, very thank you, sir. So this is there. It means there is no problem, no query. So now we are concluding the class, and I am ending the session. Thank you all. Thank you very much. थैंक यू। ये शत्रुघ्न पूछ रहे हैं यहाँ पे एक चीज कि इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है नहीं। यहाँ शत्रुघ्न पूछ रहे हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है। क्रिटिसिज्म करने वाले तो करते ही हैं क्रिटिसिज्म, चाहे वो आइडियलिज्म हो या कोई भी हो, क्रिटिसिज्म तो होगा ही उस पर। ये देखें आप, मैं पहले तो मैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताऊं, फिर उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा क्रिटिसिज्म के ऊपर। क्रिटिसिज्म भी करते हैं। अब जैसे इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म लोग ये करते हैं कि ये लोग आइडियशनल वर्ल्ड में घूमते हैं, है नहीं। ये लोग कहते हैं कि ये लोग आइडियशनल वर्ल्ड में, जितने आइडियलिस्ट हैं ये एक आइडियशनल हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, यानी ये रियलिटी नहीं है। यही एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, यही एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो आप तो क्रिटिसिज्म से कोई नहीं बचा हुआ है, आप कितना ही आइडियलिस्ट बन जाएं आप पर भी क्रिटिसिज्म होंगे। तो क्रिटिसिज्म से कोई खाली नहीं है। मैं कुछ बातें वहां पर भी डिस्कस करूंगा जब ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।